ये मतलब है कि जो लोग रूम में हैं कम से कम सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ. They are listening to what is happening. Now the time is I introduce. Many people knows you, but some of not knows you. So I introduce yourself because need to official introduction. So this is Deepak Khemani. He is a financial planner and chartered financial gold planner from AFM, advanced finance gold planner from AGFE, AFM USA, award in financial planning CIA UK, and domain expertise in holistic personal financial planning, insurance and investment planning, retirement, life stage and estate planning. Achievement at awards, a life member of a prestigious $1 million round table MDRT USA, a distinction less than 0.1% of insurance advisors across the world are able to achieve. Life member of a Chairman's Club, LIC of India. He has the unique distinction of putting out 1 2-minute video on a personal finance topic, the 2-minute money personal finance show every day for 365 days. His YouTube channel has 500 plus videos on various topics of personal finance. Experience past training, conduct multiple training with upward with an audience of 1,000 plus in single session. Conducted training program for corporate social NGOs, spoken of prestigious industry event like IFA Galaxy, MFRT, ICA, IEPA, and Orthomitra Gurukulam. He has also been on the TEDx Gateway Unplugged stage twice. Impalent trainer with CIL, Center for Investment Education and Learning, author of Compounding, The Wonder, the best-selling book, and Amazon. This is short introduction. This is not possible in this forum to tell many things more. Who already meet with Deepak ji. Everybody knows what is Deepak ji. Hand it over to Deepak ji, please. Thank you, Gautam da. ये पढ़ने से तो बहुत सारी चीजें लगती है कि अरे ये किया है, but that is not important. What is important is the love and affection we get from people from our fraternity. हमारे fraternity के जो लोग हैं, profession के जो लोग हैं, जो प्यार देते हैं, उससे मजा आता है और कुछ नहीं है. ज्ञान तो सबके पास है. सनत जी ने बताया ज्ञान और नॉलेज में क्या फर्क है, which is a wonderful distinction. आजकल ये भी बहुत जरूरी है. तो I don't have any presentation. मेरे पास कोई भी slides नहीं है, मैं कोई भी ज्ञान नहीं देने वाला हूँ. There is some knowledge which I have gained over the past 38 years that I have been a life and health insurance advisor. My agency is from 1984. 84 में मैं 18 साल का हुआ था. डैडी उठा के लेके गए, बोले चलो ये काम तुमको करना है क्योंकि हमारी फैमिली का यही काम है. Now we are here in 2022. I'm just trying to share all the experiences which I have so that all of you become better advisors. Now, I want this to be as interactive as possible. My first question to all of you is, how much health insurance do you have for yourself? आज के दिन में आपका health insurance कितना है? Chat box में type करिए. 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 50 लाख. Just keep on typing. I want everybody to participate. 1 crore, wonderful. 40 lakhs, superb. 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. 10 lakhs. 10 lakhs. 5 lakhs family floater, 10 lakhs. 10, 18, 12, wonderful. 7 lakhs. Chalo. The good thing is, people are listening to me and they are responding and they are answering. तो ऐसा नहीं कि खाली किसी ने login करके रखा है. They are answering. Thank you everybody for sharing. Let me start this by saying कि there is no right answer to this question. किसी के लिए 5 लाख enough हो सकता है, किसी के लिए शायद 1 करोड़ भी कम हो सकता है. Somehow, people seem to be in love with this 5 lakh figure. I don't know why. ज्यादा करके लोगों का आंसर देखेंगे ना तो 5 लाख है. क्यों है पता नहीं. One reason could be आज से बहुत साल पहले. दीपक जी आपको थोड़ा रोक देता है. 5 लाख मेरा भी है, लेकिन 95 लाख टॉप अप है. टॉप अप है. समझ गए. तो टॉप अप इज आल्सो नहीं, वो सब तो नहीं पता चल जाए कि 1 करोड़ तो लिख दिया कैसे हो गया. हम लोग इसका ताकत किया कैसे मिला.
Yes, yes. So So clarity. मेरा we भी will- सेम केस है, 10 लाख Yes. प्लस 30 लाख। वंडरफुल, वंडरफुल। तो इस बात को भी डिस्कस करेंगे, टॉप अप कैसे सिलेक्ट करना, क्या करना और क्या लोग मिस्टेक करते हैं टॉप अप सिलेक्ट करने में। तो वी विल कम टू दैट आल्सो। हैविंग सेड दैट, आज से कुछ 10 या 15 साल पहले, जब तक ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं आई थी, मोस्ट ऑफ दीज गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज, यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, इसमें मैक्सिमम पॉलिसी 5 लाख की ही मिलती थी, उससे ज्यादा नहीं देते थे। इसीलिए उस वक्त सबसे ज्यादा पॉलिसी किसी को अगर होती थी 5 लाख की होती थी। Then when they opened up, they started giving an extra 5 लाख। तो मेरे पास आज भी कस्टमर्स हैं जिनके पास 2-5 लाख की पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि उस वक्त 10 लाख एक पॉलिसी के अंदर वो सिस्टम इशू ही नहीं करता था। लास्ट कुछ सालों से दे हैव नाउ स्टार्टेड मर्जिंग। तो अगर आपके पास एक 5 लाख की पॉलिसी है और दूसरी 5 लाख की पॉलिसी है, और अगर वो सेम डेट पे ली हुई है तो मर्ज हो जाती है। एक अगर जनवरी में है और एक अगर फरवरी में है तो मर्ज नहीं होती है, आपको एक बंद करके वापस एक नवी चालू करनी पड़ेगी। So this is the process. You can actually merge 2 5 lakh rupee policies and make it 1 10 lakh rupee policies अगर वो एक ही महीने में है तो the system allows. Now, leaving that aside, आज से 10 या 15 साल पहले 5 लाख was considered more than enough, because उस जमाने में अगर किसी का हार्ट का भी ऑपरेशन होता था ना, तो 2.5 3 3.5 लाख में, इवन इन अ सिटी लाइक बॉम्बे 4 या 5 लाख में हो जाता था। तो सबको लगता था 5 लाख इज मोर देन इनफ। कोविड इन द लास्ट 2 years हैज शोन अस कि अगर कोई आदमी 3 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसका 15 लाख, 20 लाख, इवन 40 लाख रुपए बिल आया है। ठीक है, ऑल ऑफ अस नो दिस। दैट इज व्हाई इट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that not only all our customers have a higher health insurance cover, but we, all of us, first need to understand कि जो भी चीज मैं बेच रहा हूं, क्या मैं खुद के लिए अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं। Let me tell you a small story of my life. Approximately 8 or maybe even 10 years ago, 12 years ago, I'm now 55. That time I was 42, correct, 42. उस वक्त बहुत सारी बातें होती थी कि लाइफ इंश्योरेंस बेचो, टर्म प्लान बेचो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो किसी लोगों को हमने टर्म प्लान बेचे जो लोग समझते थे। आई एम टॉकिंग ऑफ 12 years ago. एक दिन हम घर पे बैठे थे एंड वी डिसाइडेड, दुनिया को तो हम टर्म प्लान बेच रहे हैं पर मेरे पास खुद का टर्म प्लान नहीं है, व्हाट इज गोइंग ऑन। इमीडिएटली फॉर्म भरा LIC के ऑफिस का। अभी LIC के एजेंट है तो LIC को ही काम देंगे। LIC का 1 करोड़ का टर्म प्लान खुद के लिए ले लिया, खुद के लिए। जब रियलाइजेशन हुई कि हम अगर सबको बेच रहे हैं तो हमारे पास खुद के लिए क्यों नहीं है। दैट सेम लॉजिक नाउ ब्रिंग्स अस इनटू हेल्थ इंश्योरेंस। उस वक्त हमारा भी हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 5-5 लाख रुपए का था। कंपनी अलाउड अस 2 पॉलिसीज ऑफ 5-5 लाख। 5-5 लाख का इंश्योरेंस 10-10 साल तक कुछ क्लेम नहीं हुआ। इसमें 50% बोनस आ गया, इसमें 50% बोनस आ गया। 15 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आ गया। नाउ सिंस private insurance companies came, most of us either empaneled with private insurance companies using our own code or using our wife or daughter or son's code. Now we have 2, maybe even 3 agencies if you are not in the broker model. Under the individual plan you can do only that much, correct? So now जैसे आप सब लोग ने आंसर किया कि मेरा आप सबका इंश्योरेंस कवर कितना है, मेरा इंश्योरेंस कवर आज के दिन में पर्सनल, माय पर्सनल इंश्योरेंस कवर इज 35 लाख रुपीस हेल्थ इंश्योरेंस कवर। अच्छा, Is it enough? I don't know. क्या बहुत ज्यादा है? I don't know. There is no right or wrong answer to this. Let me share a example of one very very big customer of ours. आज से 8 या 10 साल पहले उनके पास सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस था। जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आई, हमने उनको बड़ी पॉलिसी दी, 10 + 15, 25 लाख रुपए की पॉलिसी। मुझे लगा था 25 लाख रुपया उसके लिए इनफ है at that time. This is a few years ago. However, this person from his own side, every year जब उसकी पॉलिसी रिन्यू होती थी ना, बोलता था दीपक इस साल बढ़ाओ, 25 का 30 किया, 30 का 40 किया, 40 का 50 किया 2 साल पहले। लास्ट मंथ दिस पर्सन गॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल। कैशलेस में तो सब कुछ हो गया बिकॉज एवरीथिंग वाज डन वेल। नाउ he has been hospitalized. He was in hospital for 3 weeks. He has been discharged home. उसका 15 दिन के बाद एक सर्जरी होगी, उसके और 15 दिन के बाद एक और सर्जरी होगी, और उसके एक और 15 दिन के बाद एक सर्जरी होगी। वो बीमारी है उसकी।
he has a cover of 50 lakh rupees, 50. Of course, affordability है, HNI है, he can afford it. बात ये है कि मेरे बोलने से पहले उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि मेरा कवर इंक्रीज करिए. तो जैसे सनत जी ने बोला, देयर आर सम कस्टमर्स हु हैव द नॉलेज and the information. Some have information, some have knowledge, some have both. They have taken that information, converted it into knowledge, and when we sat together, sir, करिए, मिलता है बिना मेडिकल के, क्यों नहीं करेंगे, कर लेते हैं. So the first takeaway for all of us after this meeting tonight, when we will go to sleep or we will get up tomorrow morning, is we will review कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए और फैमिली के लिए इनफ है कि नहीं. There is no right number for enough. अगर आप कोई टीयर 3 सिटी में रह रहे हैं, आपके लिए शायद 5 लाख रुपीस मोर देन इनफ हो सकता है. अगर आप टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं, शायद आपके लिए 25 लाख भी इनफ नहीं है. आई कैन स्पीक अबाउट बॉम्बे. अगर कोई भी बॉम्बे के वन ऑफ द 5-star होटल्स, देखिए होटल वर्ड निकल रहा है, 5-star हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता है, मोटा मोटी एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया है. मोटा मोटी वो आपसे इतने सारे टेस्ट कराएंगे, इतने बार डॉक्टर आके विजिट करके जाएगा, एक्सरेज, ब्लड सैंपल, ये वो, HRCT हो ना हो, जरूरी उनका टारगेट दिया है, इतना बिल हर एक आदमी का, पेशेंट का हमको निकालना है. लास्ट ईयर माय फादर पास्ड अवे. ही वाज इन ICU फॉर 21 days and he was in a level 2 hospital which we would call in Bombay, not the very costliest one, but एक लेवल उससे नीचे. रोज का खर्चा 50,000 रुपया था, 50,000 रुपया एवरी डे. 21 दिन का खर्चा 10 लाख रुपया आया, 10 लाख रुपीस फॉर 21 days. ठीक है. ही वॉज 81 years old. उनके पास एक ही पॉलिसी थी जो आज से शायद 25 साल पहले ली थी. कभी लाइफ में बीमार नहीं हुए थे तो कभी सोचा ही नहीं उसको बढ़ाने के लिए. 3 लाख का पॉलिसी था, 10 लाख रुपया खर्चा आया, 3 लाख कंपनी ने दिया, 7 लाख वी स्पेंट आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट. Why I am giving you this example? हम दुनिया भर को ज्ञान देते हैं कि आप ये लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर वो जैसे बोलते हैं चिराग तले अंधेरा. Just because he was fit and fine and he never fell sick, we never thought कि इसका इंश्योरेंस हमको बढ़ाना चाहिए. सबके साथ ऐसा होता है. We all learn the difficult way. Let's use this experience and learning to first, at the end of this lecture, at the end of this program, at the end of this session, decide how much is important for us. Is anyone having any question at this point? अगर आपको चाहिए क्वेश्चन को टाइप करिए, अगर चाहिए आपको अनम्यूट करिए और डायरेक्ट पूछिए. हिंदी इंग्लिश चलेगा, बांग्ला आई डोंट अंडरस्टैंड. Anybody has any question up to now? See, it is your questions which will make me move ahead. मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं, वो जैसे फ्लो में आएंगी मैं एक-एक करके बोलते जाऊंगा. If anybody has any question, please ask. Otherwise, I will move ahead. Sir, yes. Government give the opportunity of health insurance. Yes. That is Modi जो इंश्योरेंस दिया 5 लाख के लिए. Yes. और एक इंश्योरेंस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दिया स्वास्थ्य साथी कार्ड. Yes. 5 लाख 10 लाख तक देते. तो इंश्योरेंस का सब्स्टिट्यूट है इंश्योरेंस का नहीं. ओके. तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस है ना, इसकी मेरे पास 100% फुल जानकारी नहीं है. व्हाट आई कैन टेल यू इज दिस, अवेलेबल है, मिल रहा है आपके लिए, जरूर लीजिए. बिकॉज एट दैट प्राइस पॉइंट उतना कवर नहीं मिलने वाला है इंडिविजुअल पॉलिसी में से कहीं पर भी. Now, since you have asked that question, I wanted to take this a little later, but let me bring in this topic. Most of the banks where we have accounts are now selling health insurance policies. This comes under group health insurance. स्टेट बैंक में जाइए, आपको वो SBI जनरल की पॉलिसी बेचेंगे. कैनरा बैंक में जाइए तो फिर आपको वो I was in Canara Bank day before yesterday, टाटा AIG की पॉलिसीज है. आप HDFC में जाइए, HDFC अर्गो का पॉलिसी बेचेंगे. How does this policy work and how is it better
or not better compared to the individual health insurance policies. One, these group health insurance policies premium is much lower than an individual policy. इसका मतलब क्या? अगर मैं 5 लाख रुपए की अपने नाम पे पॉलिसी डायरेक्ट कंपनी से, किसी भी कंपनी से जाके लूं मार्केट में, डिपेंडिंग अपॉन माय एज, लेट्स अज्यूम मेरा प्रीमियम 10,000 है. यही पॉलिसी अगर मैं बैंक से जाके लूंगा ना, तो यही 10 लाख रुपए की पॉलिसी मुझे शायद 5,000, 6,000, मे बी 7,000, डिपेंडिंग अपॉन विच कंपनी यू आर बाइंग फ्रॉम, वो मिलेगी. One, you are saving some money when you are buying this group health insurance policy. Second, most group health insurance policies come without any waiting periods and terms and conditions. Thank you. Chat mein you are sharing Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. Thank you for sharing that. So let me come to this bank policies. They are cheaper. They have got lesser terms and conditions. They have got lesser or no waiting periods. ये पॉलिसी में अगर आप अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी लेते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाता है 6 महीने के बाद. I know of group insurance policies where people took the policy और 1 साल के अंदर they did a knee operation. A knee operation, when you buy any other individual policy outside, whether in the government or the private sector, you will compulsorily get a waiting period of 2 years. Some policies 3 years. तो बहुत सारी बैंक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कस्टमर का फायदा है. आई नो ए लॉट ऑफ सीनियर सिटीजन्स हु वर 60-65 प्लस. इनवेरिएबली कोई अगर 60-65 प्लस के ऊपर है ना, चांसेस है उसको या तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या थायराइड या इन तीनों का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा. दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस और दिस प्लस दैट. ऐसे लोगों को अगर आप डायरेक्ट इंडिविजुअल पॉलिसी देते हैं, लोडिंग कभी कभी ऑलमोस्ट 50% आ जाता है. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, लास्ट 2 या 3 साल में सीनियर सिटीजन्स के जो प्रीमियम बढ़े हैं, इफ यू हैव नोटिस्ड इन द लास्ट 2 or 3 years, सीनियर सिटीजन पॉलिसी प्रीमियम्स हैव डबल्ड इन 2 years. न्यू इंडिया ने आज से 3 साल पहले ये किया था. जिन लोगों की 25,000 रुपए की पॉलिसी का प्रीमियम आता था, नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल आया 50,000 आया. इट स्टार्टेड विद न्यू इंडिया, देन वेंट टू ओरिएंटल, National did it in the last. In my circle, जो हमारे customers हैं, in the last 2 years, I have lost more than 15 senior citizen individual and families who have stopped paying their health insurance premium because they simply could not afford it. अगर किसी ने 30,000 रुपया भरा है और उसको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल 65,000, 70,000, 75,000 आ रहा है, बोलता है हम अपना घर का खर्चा संभालेंगे कि गवर्नमेंट को 75,000 रुपीज देंगे. सो पीपल हैव स्टॉप्ड पेइंग देयर इंश्योरेंस बिकॉज द प्रीमियम हैड बिकम टू हाई. अभी ऐसे लोगों को जितना भी समझाने की कोशिश करो, बाबा इतने साल से आपने पॉलिसी चलाई है, अब भी जो सीनियर सिटीजन है, चांसेस आर यू विल नीड दिस पॉलिसी नाउ. बट बोलते हैं दीपक बट करे क्या, इफ आई कैन नॉट अफोर्ड इट, आई कैन नॉट अफोर्ड इट. सो इन cases like these bank health insurance policies are a good fit for these people. I know some senior citizen customers of mine जिनको मैंने बोला है आप मेरे से पॉलिसी प्लीज मत लो, बहुत महंगी है, प्लस वेटिंग पीरियड मिलेगा, कैटरैक्ट का वेटिंग पीरियड, नी ऑपरेशन का वेटिंग पीरियड, हाइपरटेंशन का वेटिंग पीरियड, डायबिटीज का वेटिंग पीरियड, थायराइड का वेटिंग पीरियड. बाकी बची कौन सी बीमारी? कोई भी अगर आप बीमार होंगे, द कंपनी विल फिट करे, ये तो तुम्हारा डायबिटीज की वजह से था, ये तो हाइपरटेंशन का था, ये तो थायराइड का था. क्लेम तो मिलने वाला नहीं है 3 या 4 साल के लिए. These people actually took policies from their bank, the group health insurance policies, and in times of claim they were given. So if you are an advisor, and when I say advisor, it is not about mutual fund, RIA or MFD. If you are doing insurance, you can easily call yourself an insurance advisor, and no regulator in this country can stop you from using the word insurance advisor. क्यों? क्योंकि insurance SEBI के अंदर नहीं आता है. आप अपने आप को इंश्योरेंस एडवाइजर बिल्कुल बोल सकते हैं. और अगर आप सचमुच में इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन यू विल हैव टू टेल योर कस्टमर, ये पॉलिसी मेरे से मत लीजिए, वहां पर आपको चीपर पॉलिसी मिल रही है. यू विल लूज आउट ऑन दैट कमीशन, बट द अमाउंट ऑफ गुडविल विच यू विल गेन फ्रॉम दैट सीनियर सिटीजन इज गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ बिजनेस इन द years to come. Not within the insurance space, but there are so many things all of us do. वहां से काम आते रहेगा. So if you have a customer जिनको बड़ी उम्र में ये वेटिंग पीरियड की तकलीफ होती है, use the
group health insurance policy given by banks. Now, these were the advantages of group health insurance policies. What are the Sorry to interrupt, disadvantages? sir. Sorry to interrupt, sir. Yes, because क्या बोलिए. सारे बैंक ये पॉलिसी देते हैं या कुछ लिमिटेड question. बैंक हैं? Good question. Good question. So, in my experience, most banks have moved to the model of selling. बैंक का जो नॉर्मल बैंकिंग में से इनकम है ना, नॉन बैंकिंग सर्विसेज में से ज्यादा इनकम है, फी बेस्ड सर्विसेज. तो बैंक आपको आजकल म्यूचुअल फंड बेच रहा है, आपको लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा है. आप बैंक में जाइए एफडी लेने के लिए, आपको वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चिटका देगा, एफडी नहीं लेगा, बिकॉज उसमें उसकी कोई कमाई नहीं है. तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज मोस्ट बैंक्स. व्हेन आई से मोस्ट बैंक्स, ऑफ कोर्स देयर विल बी बैंक जिनका या तो कोई टाई अप नहीं है या वो नहीं करना चाहते हैं. बट इफ यू आर बैंकिंग विद the bigger private sector and the bigger PSU banks in India, almost all of them have a tie-up with some insurance company. Most of the banks will first push their insurance company's product. SBI है तो SBI General बेचेगी, HDFC बैंक है तो HDFC Ergo बेचेगी, ICICI है तो ICICI Lombard बेचेगी, होगा ऐसा ही. लेकिन नाउ द रेगुलेटर हैज टोल्ड देम कि आपको लोगों को अल्टरनेटिव्स भी देने हैं. तो आजकल जो HDFC बैंक और मेरे को ईमेल्स आते हैं, दे आर सेलिंग मी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, दे आर आल्सो सेलिंग मी बिरला लाइफ इंश्योरेंस, दे आर आल्सो सेलिंग मी टाटा का लाइफ इंश्योरेंस. ऐसा है. सो मोस्ट बैंक्स हैव गॉट इनटू दिस पॉइंट वेयर दे आर ऑफरिंग दीज सर्विसेज. लेट्स कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ बाइंग ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द बैंक. वन, ये जो भी टाई-अप्स रहते हैं ना बैंक के, दे आर फॉर फिक्स्ड पीरियड्स, 2 years, 3 years, 5 years. In my experience, I have seen most banks every 3 or 5 years they will change over the health insurance company. For example, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आज से 2 या 3 साल पहले तक नेशनल इंश्योरेंस के साथ ऑलमोस्ट 8, 10, 12 साल से टाई अप था, कंटिन्यूअस. Suddenly one day they decided. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए सुजन. या सो बहुत साल तक उनका नेशनल इंश्योरेंस के साथ टाई अप था. नेशनल इंश्योरेंस की 5 लाख की पॉलिसी लीजिए, आपका प्रीमियम था 15,000. बैंक ऑफ बड़ौदा से लीजिए, प्रीमियम था 6,000. लॉट्स ऑफ पीपल हैड दैट पॉलिसीज. सडनली वन डे बैंक ऑफ बड़ौदा डिसाइडेड, नथिंग डूइंग, मेरा टाई अप नेशनल इंश्योरेंस के साथ खत्म हो रहा है, आई एम नाउ टाइंग अप विद अनदर कंपनी. दे टाइड अप विद मैक्स बूपा. दे हैव वन मोर टाई अप आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नाउ आपकी जो 6,000 रुपए की पॉलिसी थी जिसके लिए आप 5,000 भर रहे थे, सबके पास लेटर आया, प्लीज कन्वर्ट टू द इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफ नेशनल इंश्योरेंस. डिपेंडिंग अपॉन द एज, किसी का प्रीमियम 6,000 से 10,000 हुआ, किसी का प्रीमियम 6 से 15,000 हुआ, किसी का प्रीमियम 6 से 20,000 रुपया हुआ. उसमें भी वो जो चेंज ओवर हुआ, दैट वॉज पुट अपॉन यू. आप इस फोन नंबर को फोन करिए, इस ब्रांच में जाइए, तभी होगा. The bank did not automatically migrate you to a personal policy. So, जिस भी चीज के अगर कभी कोई एडवांटेज होते हैं, कभी डिसएडवांटेज होते हैं, you have to explain to your customer कि this is the possibility, ये हो सकता है और ये हुआ है. नहीं सर, 80% वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया. Yes, बहुत सारों का ऐसा भी 80% हुआ. पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया बैंक Yes, का. yes. So बहुत सारों के साथ ऐसे Yes, भी sir. हुआ था. They did not give an option National कि आप Insurance- migrate करिए. नेशनल इंश्योरेंस एक लिस्ट दे दिया. Yeah. आई एम द एजेंट ऑफ नेशनल इंश्योरेंस. जाओ खुद ये पार्टी वो पार्टी कांटेक्ट करो, बट Yes. वी आर फेलियर. Correct. So this is what I am coming to. This is the risk when you are buying a group health insurance policy from the bank. ठीक है? Anybody has got any questions? हेलो Yes, सर, बोलिए. एक चीज थी Yes. कि जैसे अपन ये पॉलिसी लेते हैं बैंक से, तो Yes. मेरे को याद है कि बैंक ऑफ इंडिया का नेशनल इंश्योरेंस से टाई अप था Yes. काफी समय तक. Yes. फिर अचानक उन्होंने कहा था कि अब हमारा टाई अप खत्म हो गया है, आप अपनी खुद पॉलिसी लीजिए. लेकिन जब पॉलिसी लेते थे उस समय उनके फॉर्म में क्लियर मैंडेट ये लिखा था कि सर्विस के लिए हम बाध्य नहीं है, आपको खुद ही सर्विस लेनी है बैंक से, मतलब Correct. कंपनी से. तो यहाँ पे एक तो क्या होता है कि वो जो क्लाइंट है वो सर्विस नहीं ले पाता, वो कहीं ना कहीं मिसगाइड होता है इस चक्कर में. Yes. दूसरा चीज, यदि जैसा भी एक मेरा ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी बैंक से ली है और चूंकि मैं खुद इंश्योरेंस वाला हूँ तो इसलिए पता है. जैसे स्टार हेल्थ का भी टाई अप है इससे, बैंक ऑफ इंडिया से भी और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी है स्टार हेल्थ का. Yes. तो मैंने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लिया है,
उसमें मेरा एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप टॉपअप लेते हैं या तो टॉपअप क्या सेम कंपनी से लेना चाहिए कि यदि दूसरी कंपनी से भी ले सकते हैं, तो यहाँ क्या एक क्लेम सेटलमेंट में क्या दिक्कत आएगी क्या? गुड क्वेश्चन। ट्विटर पे ये चीज बहुत डिस्कस हो रही थी लास्ट वीक। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल मॉर्निंग स्टार पे नेक्स्ट 2 या 3 दिन में आने वाला है, खास इस क्वेश्चन के लिए, पर इसका भी मैं आंसर दूंगा। जस्ट गोइंग अहेड, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये क्वेश्चन आपने पूछा, आई विल टेल यू। ये टॉपअप सिलेक्शन करना, साथ में लेना, कौन सी कंपनी का लेना और कब लेना और कब नहीं लेना, आई विल कम टू दैट। जस्ट होल्ड दैट थॉट, let me finish Okay. this thing Okay. of Thank you. having the health insurance from the bank. Anybody has got Okay, any other thank you. question? Yeah. दीपक सर, बैंक से परचेज करने में नो क्लेम बोनस भी नहीं मिलता? Group health insurance policy में no claim bonus नहीं नो होता। क्लेम बोनस भी नहीं है, फिर पे पोर्ट भी नहीं हो सकती पॉलिसी? पोर्ट उसी कंपनी में इंडिविजुअल पॉलिसी की हो कोई- सकती है। यस, अगर किसी आपके दूसरी पास पॉलिसी में पोर्ट नहीं हो सकती, दूसरी दूसरी कंपनी में। पॉलिसी में पोर्ट करने के लिए पहले आपको उसी कंपनी में 1 साल इंडिविजुअल में पोर्ट करनी Individual. पड़ेगी, फिर उसके बाद आप फिर दूसरी किसी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यू विल हैव टू फॉलो दिस। सो द क्वेश्चन राकेश हैड आस्क्ड वाज that if you have a group health insurance policy from the bank, you will not be able to port. Okay, so if I want to port, what can I do? Within the group insurance policy, I first port to the insurance policy of the same insurer. मतलब अगर मेरे पास नेशनल इंश्योरेंस की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं नेशनल इंश्योरेंस के ऑफिस में जाऊंगा, बोलूंगा मेरे को अभी इंडिविजुअल पॉलिसी चाहिए आपकी, वो लोग वहां से वो डेटा उठा के आपको इंडिविजुअल पॉलिसी दे देंगे। नाउ यू मूव आउट ऑफ नेशनल इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर टू वेर एवर यू वांट टू गो। स्टार में जाना है, बूपा में जाना है, ऐसे कहीं पर भी जाना है, टेक योर पिक। दैट इज द प्रोसेस you will have to follow if you want to port. Second, there have been these instances also where a bank, and I know this has happened with my customers, were having a tie-up with one company, then they decided to end that tie-up and have a new tie-up with a new company, but they gave this option to their bank customers कि आपके पास ये पॉलिसी है, हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग का काम हमारा है, हम कर देंगे, आप खाली मुझे बोलिए yes, you agree to move from this company to that company and the premium is going to increase from 6,000 to 8,000. All the customers who gave that consent yes were transferred to the new company. So that also happened. Again, this what I am talking as a distributor, as an advisor, as a broker, as a person who gets commission out of selling policies, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, correct? But if I am able to help the customer, why not do it? That makes you stand apart from somebody else market में जो खाली बेचने के लिए खड़ा है। अगर आप एडवाइजर हैं, you need to have the best interests of your clients at heart. This is one way you can prove to the client कि देखिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, पॉलिसी का मैं आपको बेच नहीं सकूंगा, आपको बैंक से लेनी पड़ेगी। सर्विसिंग probably I will be able to do. I know clients who have policies through their bank and they are senior citizen. जब उनका क्लेम आया, बोला दीपक हम तो ये बेच नहीं सकेंगे, फॉर्म लेके आओ, भर के जाओ, फाइल बनाओ, रजिस्टर पोस्ट से बेचो, करके दिया, आ गया क्लेम, गुडविल अगेन। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। एनी क्वेश्चंस? सर वन क्वेश्चन नादर, बोलिए सर जब हम पोर्ट करते हैं या चाहे सेम कंपनी या अदर कंपनी में, या तो उस टाइम फिर से फॉर्म भरा जाता है कि जो सारे क्वेश्चन रहते हैं रिलेटेड टू डिसीज, यस तो जैसे बीपी है, शुगर है, यदि किसी क्वेश्चन में हमने यस लिख दिया तो हम कंटिन्यूटी बेनिफिट चाहते हैं, यस तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, मतलब ये वो कंपनी एक्सेप्ट करे या नहीं करे, या यानी कोई बंधन है इसमें कि वो करना ही है उनको? Yes, ये पूछना था। Good question about porting. Whenever I decide to port from any company to any other company, the company I am porting to, जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ, has the full right to refuse your application if it feels that depending upon what questions you have answered, you are uninsurable. इसका ये मतलब है कि अगर आप नई भी कंपनी में जा रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं मेरे पास डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, मैं थायराइड की भी गोली लेता हूं, द कंपनी हैज द फुल राइट टू टेल यू नहीं, मैं आपकी पॉलिसी नहीं लेना चाहता, आप वहीं पर वापस जाओ। यू कैन नॉट फोर्स द न्यू कंपनी टेलिंग देम मेरा पॉलिसी आपको लेना ही पड़ेगा। नो, द राइट ऑफ गिविंग यू ए पॉलिसी रिजर्व्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम आपको पॉलिसी देंगे या नहीं देंगे। तो सर यदि सेम कंपनी हो, तो सेम कंपनी में बैंक से इधर डायरेक्ट इंडिविजुअल ले रहे हैं पॉलिसी सेम कंपनी में, then they should not refuse. Logically they should not refuse, because
आप उसी कंपनी से उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट में जा रहे हैं और आप उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं, बिकॉज द इंडिविजुअल पॉलिसी इज ऑलवेज कॉस्टलियर देन द ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी. दे शुड नॉट रिफ्यूज. Okay, okay. And Sir, by one- IRDA rules, by that logic, you should get continuity. If you are not increasing your sum insured, there will not be any extra waiting periods. कुछ भी नहीं extra waiting period मिलेगा. ओके ओके सर, अभी एक रूल आया था. पूछिए पूछिए. सर, अभी एक रूल आया था कि यदि किसी की पॉलिसी 8 वर्ष चल गई है, Yes. फिर एनी किसी भी बैकग्राउंड पे क्या क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते या कंपलसरी पे होगा? Correct, correct. So good question again. Thank you for asking this. A lot of people feel कि अगर मैंने पॉलिसी लेते वक्त कोई चीज छुपाई थी या कोई गलत चीज बताई थी और मेरी पॉलिसी इशू हो गई है, तो 8 साल के बाद बाय डेफिनेशन ऑफ दिस रूल ऑटोमेटिकली मुझे क्लेम मिलेगा. अप टू अ पॉइंट सही है, लेकिन द कंपनी इफ दे कैन प्रूव फ्रॉड, इफ दे कैन प्रूव मैलिफाइड इंटेंट, विच मीन्स 8 साल पहले आपको कैंसर हुआ था और आपने फॉर्म में लिखा मेरे को कुछ नहीं है, कंपनी ने आपका क्लेम आया 8 साल के बाद, आप जिंदा हो आफ्टर दैट कैंसर. इफ दे फाइंड दैट आपने कैंसर छुपाया है, डिस्पाइट दिस रूल कि 8 साल के बाद आप क्लेम नहीं रिजेक्ट कर सकते, दे विल रिजेक्ट योर क्लेम बिकॉज नाउ दे आर प्रूविंग कि फ्रॉड हुआ था. तो सर, ये कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा नहीं आपने मटेरियल फैक्ट को छुपाया था और आपने Yes. फ्रॉड किया था, ये प्रूव करना पड़ेगा ना? करेक्ट, प्रूव करना पड़ेगा ना. तो देखिए, आप विश्वास करिए, जब से ये प्राइवेट कंपनीज आई हैं, इन्होंने नए नए इनोवेटिव तरीके ढूंढ लिए हैं हॉस्पिटलाइजेशन और उसको फॉलो अप करने के लिए. आपके पास अगर Okay. स्टार की एजेंसी है या जिनके पास Okay. यहाँ स्टार की एजेंसी है, दे विल बी नोइंग. स्टार में जब हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम जाता है ना, बहुत सारे केसेस में एक आदमी दूसरे दिन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है चेक करने के लिए कि वाकई ये आदमी इस हॉस्पिटल में इस बेड पर है कि नहीं. कभी कभी वो लोग नहीं, वो flowers आते हैं. लेके आते हैं, गेट वेल सून करके. दैट इन द बैक Okay. एंड इज एक्चुअली डिटेक्टिव्स जो लोग बैठे हैं टू फाइंड आउट कि वेदर वाकई ये आदमी एडमिट हुआ है कि नहीं. Let me see, I'm going on record and I'm telling you something which had happened 20 years ago. I have known cases where customers didn't get admitted to hospital, but doctor and the hospital gave a hospital bill, consultation bills, hospital admission, discharge card, पूरा claim file बना, कंपनी के पास गया और पैसे भी मिले. This used to happen a lot. आजकल भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है. पहले बहुत ज्यादा होता था. सो ये कंपनीज ने जब से ये चालू किया है, वेरिफिकेशन / डिटेक्टिव / फ्रॉड डिटेक्शन, इन द बैक एंड दे विल गो टू योर नेबर्स, दे विल गो टू योर लोकल केमिस्ट, दे विल गो टू योर डॉक्टर्स, समटाइम्स दे इवन गो टू योर फैमिली मेंबर्स, अगर उनके पास कहीं पर कुछ रिकॉर्ड है, पूछने के लिए कि अरे आपको पता है क्या ये आदमी कभी ना कभी बीमार हुआ था क्या. ऑल दिस इज हैपनिंग. आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग विच इज अ फेरी टेल. ये हो रहा है बैकग्राउंड में, इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, डिटेक्टिव लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. Within which Sir, time we एक, can quote the policy? Yeah, Shinoy, let answer your question. What was your question? Within which period we can quote the policy from one company to another company? There is no period. If I take a policy today, I can port it next year also. वो साल पूरा करना है, that's all. Porting option is available to you any time upon renewal and any number of times, which means let's say last year आपने पॉलिसी नेशनल की ली, इस साल आप स्टार के पास गए, नेक्स्ट ईयर आप आईसीआईसीआई के पास गए, उसके बाद आप बुपा के पास गए. एज अ कंज्यूमर, एज an insured person, you have the right to go anywhere you want. लेकिन जब आप किसी कंपनी के पास जाओगे और उसको प्रीवियस हिस्ट्री बताओगे कि मैं ऑलरेडी 3 कंपनी बदली कर चुका हूं, उसको लगेगा नहीं यार ये आदमी मेरे को नहीं चाहिए. एज आई सेड, द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू रिफ्यूज योर एप्लीकेशन. सो डोंट मेक इट अ हैबिट. It is always better to maintain continuity with one company. There is a record. देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, but if you have worked with a company, if you have stayed with a company for 5, 8, 10, 15 years continuously, haven't claimed, chances of your claim being denied is lesser. This is only an emotional statement. ये logical statement है ही नहीं, because an insurance contract is a 1-year contract. 1 साल के बाद आप रिन्यू करते हैं, आपको न्यू पॉलिसी मिलती है, फिर न्यू पॉलिसी मिलती है, फिर न्यू पॉलिसी मिलती है. लेकिन एक आपने हिस्ट्री रिकॉर्ड की है उस कंपनी के साथ. Chances of your claim getting declined reduce considerably if you have stayed with one company. That is a loyalty bonus. Loyalty bonus, yes. बोलिए विजय.
सर ये कह रहा था कि अभी कुछ ऐसी स्थिति हुई कि जैसे कोई क्लाइंट एडमिट हुआ या और उसका रिएम्बर्समेंट हमने क्लेम भेजा, यस उसको नॉर्मल फीवर हुआ था, ठीक तो है कंपनी ने ये कह के रिजेक्ट किया कि यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, हमारी मेडिकल टीम का ओपिनियन है कि आपको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी। यस कौन सी तो कंपनी मैंने वापस स्टार में ओके यस तो सर यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लेम रिजेक्ट किया, फिर से वापस पुटअप किया, मतलब रीजनल लेवल पे वहां से रिजेक्ट हुआ, फिर या मैं नेशनल लेवल पे चेन्नई चेन्नई भेजा हुआ है। यस तो उन्होंने वहां से अभी कंप्लेन नंबर दिया है। या अब वो रिस्पांस क्या देते हैं, पर ये जो मैंने उनको लिखा कि आप कैसे इतनी दूर बैठे तय कर सकते हैं कि यहाँ भर्ती होने की जरूरत नहीं, जब यहाँ यस पे 2 डॉक्टर हैं जो एमडी लेवल के हैं, यस उन्होंने रिकमेंड किया है और इलाज किया है, यस तो ऐसा कैसे तय कर सकते हैं वो? चलिए ठीक है ओके सो आपके स्टार बोलने के पहले मैं स्टार बोलने वाला था लेकिन आपने बोल दिया है। स्टार ने ऐसे बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं स्टेटिंग दैट हॉस्पिटलाइजेशन वाज नॉट रिक्वायर्ड। आप कौन है डिसाइड करने वाले कि हॉस्पिटलाइजेशन वाज नॉट रिक्वायर्ड? मेरे डॉक्टर ने अगर मुझे बोला है आपको एडमिट होना पड़ेगा तो मैं एडमिट होऊंगा, नॉट बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ क्लेम बट बिकॉज माई डॉक्टर हैज टोल्ड टू गेट एडमिटेड। नाउ लेट्स फॉलो द प्रोसेस। कंपनी ने आपको क्लेम रिजेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को ईमेल करिए, कंप्लेन करिए, उस कंप्लेन का रिकॉर्ड रखिए, देन उसके ग्रीवेंस सेल में जाइए, ग्रीवेंस सेल के बाद आईआरडीए में कंप्लेन करिए, आईआरडीए के बाद ओम्बड्समैन। दिस इज अ प्रोसेस यू शुड हैव। Ombudsman. हाँ सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, फॉलो दिस प्रोसेस। फर्स्ट कंप्लेन टू द कंपनी, देन द ग्रीवेंस सेल के बाद आईआरडीए को कंप्लेन और आईआरडीए के बाद ओम्बड्समैन को कंप्लेन। लेट मी टेल यू, एनी कंप्लेन व्हिच गोज टू द ओम्बड्समैन, out of 100 complaints 99.9% claims are given in favor of the insured. एक बार कंप्लेन अगर ओम्बड्समैन में गई, अगर आपका फाइल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पैसे आपको ओम्बड्समैन वाला दिलाएगा। कभी 1 साल लगता है, कभी 2 साल लगता है, कोविड की वजह से बहुत सारा बैकलॉग चल रहा है ओम्बड्समैन में, बट एक लेटर, एक ईमेल टू द कंपनी सेइंग इतने दिन हो गए हैं आपने मेरा ये क्लेम रिजेक्ट किया है, मैं आईआरडीए को कंप्लेन कर रहा हूं और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेन डाल रहा हूं। 99% ये लेवल तक भी आपका क्लेम ओपन हो जाएगा और चांसेस है कि आपको क्लेम मिल जाएंगे। अगेन आई हैव सर मैंने यस बोलिए सर मैंने उनको लिख के भेजा है, प्लीज सेटल माय क्लेम एज सुन एज पॉसिबल Yes. एंड अवॉइड टिल फर्दर लीगल एंड लेजिस्लेशन वो प्रोसीजर। ठीक है, लीगल एंड लिटिगेशन में न जाइए। देखिए मेरे पास अगर कोई एक लॉयर है तो वो कंपनी इतनी बड़ी है, उनके पास 15 लॉयर अपने वहां पर बैठे हैं फाइट करने के लिए। 2 चीज से ये लोग डरते हैं, आईआरडीए में कंप्लेन और ओम्बड्समैन में। ओम्बड्समैन में इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनको यस बॉस करके वापस आना पड़ता है। आई हैव सीन दिस, इट हैज हैपेंड विद माय कंप्लेंट, समटाइम्स इट टेक्स 2 years फॉर द कंप्लेंट टू कम, लेकिन क्लेम ओम्बड्समैन में मिलता है इफ योर क्लेम इज नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब वहां पर अगर कोई गड़बड़ नहीं है, पैसे आपको मिलेंगे 100%। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते सर हैं। वन अनदर क्वेश्चन। बोलिए। सर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं। नो प्रॉब्लम, बोलते जाइए, सबका फायदा होगा। सर जो अपने जो कैशलेस में हॉस्पिटल होते हैं, Yes. जैसे उनको लगता है कि फीवर है, नॉर्मल छोटा मोटा क्लेम है, Yes. तो उन्होंने उसको कैशलेस में लिया ही नहीं, बोले हम कैशलेस अभी नहीं करेंगे, जबकि वो कैशलेस में है, हॉस्पिटल नेटवर्क में है, पर कैशलेस देने से मना किया। फिर मैंने डॉक्टर से पर्सनल जाके बात करी, पहले मिलने नहीं देते, मैंने कहा मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो उन्होंने फिर मिलने दिया, तो बोले कि हम अभी आपका नहीं करेंगे, हमको कंपनी 1 महीने बाद देती है, और डॉक्टर आउटसोर्सिंग से था, बाहर से आया था। करेक्ट तो ले मेरे को तो अभी उनको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी मेरे को 1 महीने बाद 2 महीने बाद देगी। करेक्ट तो बोले मैं काय को इसका करूं। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी निराशा हुई और क्लाइंट को भी निराशा हुई। यस तो क्या हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं? ओके, सो गुड क्वेश्चन। ये मैंने भी देखा है, बहुत सारी हॉस्पिटल्स में जब छोटा सा क्लेम आता है ना, तो वो लोग डिस्पाइट बीइंग इन द नेटवर्क वो कैशलेस या तो भेजते ही नहीं है या अप्रूव नहीं होता है। हॉस्पिटल वाले ही वो डिले करते हैं कि नहीं हो। क्यों? बिकॉज समटाइम्स some of these companies take 2 to 3 months for them to reimburse the complaint. तो हॉस्पिटल वाला या नर्सिंग होम वाला वो बोलता है सर हम तो आपको डिस्चार्ज करके चले जाएंगे, पर हमको 3 महीने के बाद पैसा आता है, इससे अच्छा आप मेरे को फुल क्लेम कर दीजिए, मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा। एंड व्हाट दीज हॉस्पिटल्स विल नाउ डू इज, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ना कैशलेस का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, whenever it comes up for renewal, then they come out of that cashless network. That is what they want to do. So इसमें हम लोग सच बताऊं कुछ नहीं कर सकते हैं। That is between our relation with the doctor, the hospital, and the doctors and the hospital relationship with the company.
I remember we were in a meeting. They said problem with health insurance is India is this. Patient doesn't trust the doctor. Doctor doesn't trust the insurance company, and the insurance company doesn't trust the patient. ये ट्रायंगल है ही तीन जन, एक पेशेंट है, इंश्योरेंस कंपनी है, डॉक्टर है या ये हॉस्पिटल है, कोई एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है. Nobody is trusting each other. हर कोई लगता है कि ये कुछ ना कुछ करने के लिए, गड़बड़ के लिए यहाँ आया है. लेकिन what I can tell you is slowly because of competition, at least in the market, Star का नाम इतना खराब हो गया है. Again, I am not empaneled with Star. I have got nothing to and bad or fro or good to say about these people. But maximum complaints जो मुझे सुनाई देती है ना, they are from Star. I don't know why. Maybe उस कंपनी को क्लेम देने में कुछ प्रॉब्लम है, या तो ज्यादा खिटखिट होता है. Some problem is there. So if you are facing this problem with this insurance company, I think you should take a call कि मुझे इस कंपनी के साथ काम करना है कि नहीं. ठीक है? Okay. So let's come to a top up. सर. Yes. बोलिए सुरंजन, बोलिए. सर एक मिनट सर. Yeah. सर एक बच्चा पैदा हुआ तो जो 3 महीने के बाद जो इंश्योरेंस किया लेकिन रिन्यूअल किया, वो बच्चा के पैदा होने के बाद वो कितना दिन पर इंक्लूड होगा विदाउट एनी पेइंग एनी प्रीमियम? ओके चलो, गुड क्वेश्चन. अच्छा हुआ आफ्टर मैरिज आल्सो. अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे ध्यान में नहीं था what I was going to say, but good you asked this question. Now there are two answers to this question. किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जब बच्चा पैदा होता है, even though the child is not part of the insurance policy, if father and mother are both having a same policy, joint family policy या floater policy है, some companies, I know Niva Bupa does this, they give the cover to the child from the day the child was born till the next renewal without paying anything extra. Yes sir, yes sir. ठीक है, तो child is covered from day one. आज बच्चा पैदा हुआ, किसी वजह से बच्चे को बीमारी हुई, हॉस्पिटलाइजेशन हुई, उसका ट्रीटमेंट का पैसा कंपनी देने के लिए तैयार है, even though that child is not part of the policy. That child will get admitted into the policy at the next renewal. One person will be added, premium will go up, और उसके पॉलिसी में अगले साल 3 नाम आएंगे. लेकिन I know Niva Bupa does this. Previously it was Max Bupa. I don't know whether any other insurance company does this or not because I'm not empaneled. I know national insurance में क्या होता है. नेशनल इंश्योरेंस में दे से अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है, हमको इंटीमेट करिए, और अगर आपको कवर आज से चाहिए, आज से रिन्यूअल डेट तक वो लोग प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करते हैं और आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हैं, या बोलते हैं आप जब रिन्यूअल आएगी तब हम इस बच्चे को ऐड करिए. नाउ देयर आर सम कंपनीज वो से मैं 08 से बच्चे को नहीं लूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 91 डेज ओनली. पहले 90 डेज के लिए, 3 मंथ्स के लिए वो लोग कवर नहीं देते हैं. एवरी पॉलिसी हैज गॉट स्टार 16 आफ्टर 16 डेज स्टार लेते हैं. ओके, सो एज आई सेड, हर अलग अलग कंपनी में अलग अलग रूल्स है. मोस्ट कंपनीज से 91 डेज, 3 महीना अगर बच्चा है उसके बाद ठीक है. व्हाई? देयर इज सम रिसर्च टू से दैट अगर बच्चे को कुछ पैदा होने के बाद प्रॉब्लम होता है, एंड द चांसेस ऑफ इट हैपनिंग इन द फर्स्ट 90 डेज इज द हाईएस्ट. अगर वो 91 डेज निकाल दिया ना, चांसेस आर कि उसका कोई बीमारी या उसका कोई क्लेम नहीं आएगा. So this is again different with every different company. There is no hard and fast rule. Whichever company you are working with, please see to it that you read the policy terms and condition. And I tell all my clients, if you read all the terms and condition of the policy, you will never buy a policy. Even I have not read all the terms and conditions in the policy which I have, because मेरे को तो लगेगा ये इतना एक्सक्लूजन ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा, सब कुछ अगर नहीं देगा तो पॉलिसी का फायदा क्या. Having said that, I also, as I told you, have not read all the terms and condition of the policies. लेकिन having been in insurance for the last 38 years, अगर मेरे लाइफ में 100 क्लेम आए हैं तो 95 क्लेम्स तो मिले ही हैं. 4, 5, 6, 8 शायद किसी वजह से या तो कम मिले हैं या तो रिजेक्ट हुए हैं. That has happened. But see, try and understand. When I'm filling in the form, when I'm an insurance insured, I am the person who is buying the policy, not the advisor. It is my duty to declare as honestly as possible whatever is asked in the health insurance application form, so that
गोइंग अहेड कभी तकलीफ नहीं हो। द प्रॉब्लम इज दिस, जब भी आप कैनवस करो ना, फॉर्म भरते टाइम लोगों से पूछेगा दवाई लेते हैं क्या, नहीं, कोई बीमारी है क्या, नहीं, ऑपरेशन हुआ था क्या, नहीं, सब कुछ नहीं बोलते हैं। पॉलिसी आ गया, 6 महीने के बाद क्लेम, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिसिन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अरे फिर उसको पूछो तुमने ये बताया क्यों नहीं, क्या बोलता है मालूम है, आजकल को तो सबको ब्लड प्रेशर होता है, एक गोली से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। अरे बाबा, एक गोली से फर्क नहीं पड़ता है। सो वी हैड अ केस लाइक दिस, वन कस्टमर डिड नॉट डिक्लेयर दिस एंड 2 or 3 years later she was admitted to hospital for stomach infection। स्टमक इन्फेक्शन कैशलेस में अप्रूव हो गया, लेकिन जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला था ना, डिस्चार्ज कार्ड जब कंपनी के पास गया, वहां डॉक्टर का लिखा था हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। कैशलेस रिजेक्ट हो गया लास्ट दिन पे, जिस दिन डिस्चार्ज हो रहा था। वो कस्टमर फोन पे मेरे को गाली देने लगा, कौन सा कंपनी तुमने हमको दिया है, पहले अप्रूव करता है फिर डिसअप्रूव करता है क्या? बाबा सुनो तो सही, लेट अस फाइंड आउट। अभी आप एक काम करो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लो, बिल भरो, घर जाओ, अगर कैशलेस रिजेक्ट हुआ है वी विल अप्लाई फॉर रीइंबर्समेंट। फिर कंपनी को जाके पूछा कि क्या है, बोला सर 20 ईयर्स का हाइपरटेंशन है, 3 साल पहले पॉलिसी लिया था, हम क्लेम कैसे देगा? फिर जब ये कस्टमर को बताया तो फिर दैट सेम लॉजिक कि आजकल एक गोली तो सब लोग लेते हैं। अरे एक गोली सब लोग लेते हैं की बात नहीं है, तुमने लिखा नहीं था, नहीं मिलेगा। फिर वो डॉक्टर से चिट्ठी लिखा के आया, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिसेस सो एंड सो हैड गॉट एडमिटेड फॉर स्टमक इन्फेक्शन, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद हाइपरटेंशन, प्लीज पास द क्लेम। क्लेम नहीं पास हुआ, डॉक्टर कुछ भी लिख के देवे, वेदर इट इज related to what you had declared or what you had not declared. There is a technical term called suppression of material facts. अगर आपने ये चीज छुपाई है, हम तो शायद आपको पॉलिसी देते ही नहीं थे, अगर देते ही नहीं थे तो हम ये क्लेम नहीं देंगे। अच्छा, if you go and fight on this, you will lose 100%. You will 100% lose. Ombudsman में जाओ, कमीशन में जाओ, यहाँ वहां किधर भी दो, 100% lose because it is your fault. In the application form, you had said, I am not taking any medication. And in the discharge card, it says history of hypertension from last 20 years. So remember these things. It is good to fight for your customer if he has been denied a real claim, something which was really due to him, जिसमें कुछ गड़बड़ नहीं था. लेकिन you cannot fight with the company on behalf of a customer who is probably fraud or misrepresenting facts. Yes, sir. हेलो Yes, विजय सर, बोलो। सर ये क्वेश्चन था अभी, क्योंकि मेडिक्लेम बहुत टेक्निकल पॉलिसी है। Yes. तो इसमें है ना, अभी जो स्पेसिफाइड डिसीज रहती है जो 2 साल के एक्सक्लूजन में रहती है, Yeah. तो उसमें है ना इन्होंने एक डेफिनेशन वो करके रखी है कि हिप्टोपेंक्रिडोबाइलरी डिसीज। अब इसमें है ना ये लीवर से संबंधित जो होता है इलाज, अब उसमें पीलिया एक जनरल बीमारी है, Yes. वो कभी भी हो जाती है। Yes. उसमें क्लेम रिजेक्ट कर दिया। Yes. ये भी स्टार पीलिया का कोई, ही है ये भी, ना? हाँ वो स्टार, आई बिलोंग फ्रॉम स्टार हेल्थ। छोड़ दो कंपनी, छोड़ दो, दूसरा कंपनी में शिफ्ट। स्टार का रेपुटेशन बहुत खराब हो गया है। यस यस, देखो एक होता है, बोलते हैं जो लेटर ऑफ द लॉ एंड देन देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द लॉ। अंडर द लेटर ऑफ द लॉ, बिकॉज वो हेपेटो मेंशन किया है, हेपेटो इज लिवर रिलेटेड, दे कैन टेक्निकली रिफ्यूज द क्लेम। बट नाउ दिस कम्स टू द अदर पार्ट, स्पिरिट ऑफ द लॉ। क्या आप क्लेम देने के लिए बैठे हैं कि आप क्लेम डिनाई करने के लिए बैठे हैं? अगर आपकी कंपनी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिनाई द क्लेम, then I don't want to work with you as a company, because of this I am losing one customer and now I am not losing a health insurance customer. मेरा गुडविल खराब हो रहा है। और हमारे जैसे लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड सब करते हैं, ये कस्टमर मेरे से ये सब चीजें करना बंद कर देगा। It is not that I will only lose his health insurance policy, I lose my face in front of the customer. That is why it is very, very important for you to carefully analyze which company you are working with, and if there is a history of rejections by that particular company, it's time to move somewhere else. Sir, which is best company in star in health insurance? See, there is no best company. If I today stand up and say Niva Bupa is the best company, ये रूम में 4 जन खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे नहीं सर, नीवा बुपा में तो हमारा इतना क्लेम रिजेक्ट किया है। अगर कोई खड़ा रह के बोले HDFC इज अ वेरी गुड कंपनी, कल एक कस्टमर ने मेरे को फोन किया, सर लास्ट ईयर मेरा HDFC में प्रीमियम था 22,000, इस साल 45,000 लिख के आया है, मेरे को कहीं पर और शिफ्ट करो। क्यों शिफ्ट करो? क्योंकि उन्होंने प्रीमियम डबल किया है। अरे पर उन्होंने प्रीमियम, खाली ये कंपनी ने प्रीमियम डबल किया है कि बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम डबल कर रही है?
post COVID, a lot of insurance companies have revised their premiums. सबसे बड़ी बात, पहले कंपनीज को प्रीमियम रिवाइज करने के लिए IRDA के पास अप्रूवल लेना पड़ता था, अभी IRDA ने वो ओपन कर दिया है. आगे चल के these health insurance companies can decide themselves how much premium they want to increase and how often. Every साल कर सकते हैं, every 3 year कर सकते हैं, every 5 year कर सकते हैं. This is going to be difficult for all of us and for all of our clients. You have to understand this. Inflation in the medical sector, in the hospitalization sector is officially आपको 10, 12, 15% बोलते हैं, पर 20% से ज्यादा है. जो हॉस्पिटलाइजेशन आज के दिन में अगर 3 लाख होती है, 3 साल के बाद उसकी 6 लाख रुपया होने वाली है. Expect premiums to go up. That is why it makes good sense not to buy a single large health insurance policy. 5 लाख या 10 लाख का पॉलिसी और 40 लाख का पॉलिसी. Buy a base policy of 5 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs, 10 lakhs, whatever you want, and buy a top up. Now this topic will take 5 or 10 minutes. Are we all ready? 9:15 already बज गया है. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर. चलो छोटा क्वेश्चन पूछिए, फिर बड़ा आंसर देंगे. हाँ सर, तुर्जुदास गुप्ता कोलकाता से. एक्चुअली मेरा जो क्लाइंट था परिवार पॉलिसी, नेशनल परिवार यस था सर, 32,000 16,000 समथिंग. तो रिन्यूअल का टाइम में वो हो गया डबल के ऊपर, मतलब 33,000. यस तो कस्टमर को पेंशन मिलता था 27,000. So he cannot afford. So I had ported to रेड कार्पेट स्टार हेल्थ रेड कार्पेट. ओके, फिर मैंने स्टार से बहुत से क्लेम रिजेक्ट हुआ मेरा. तो अभी आई हैव एम्पलन्ड विद नेशनल एंड स्टार along with LIC, and my wife is empaneled with Care Health. So one question I am asking, though maybe this is not the platform. So Care is telling that you bring business of any client, whether he is having stroke or any other diseases, all are accepted. But I want to know, since sir you are a veteran in this industry, so regarding claim, what is the position of Care? Actually, it was SRL company, and now its name has been changed from Religare to Care. So we'll take that question a little later. Let me finish the top up part and then I'll answer your question 100%. Remind me also before we close. Gautam, time है ना हमारे पास? Yes. सनोज जी का खाने का टाइम हो गया. कितना टाइम तक रहेगा वही देखने का बात है. मैं रहूंगा, मैं सुन रहा हूँ सर. अच्छा ठीक है. Thank you. So now let us come to this base policy. दीपक जी, आपको ये इसका जो मेडिक्लेम का एक वो बोलना भी आपको चाहिए. इसका कैरियर, इसका कोई बंदा 2 करोड़ का 1 साल का ईएम बना पाएंगे इसके, तो उसका क्या इनकम होने वाला है? क्योंकि आज का म्यूचुअल फंड में तो इनकम सबको घट रहा है, तो उसका पैरेलल इनकम मेडिक्लेम में सुनता ओनली प्रॉब्लम का बात करने से नहीं चलेगा. अरे जो हम लोग का कमाई नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम का बात सुनने का क्या फायदा है? गौतम दा, हेल्थ इंश्योरेंस में कमाई बढ़ता है. नहीं वही बात है. नहीं ये बात, इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ती है या मेंबर ऐड होता है. नहीं यही पे जितना आदमी है वो बात सुनने के क्यों तैयार है कि उनका कमाई इसमें अच्छा है, वो तो ये इतना हजार ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गौतम दा, ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रहा है. इसको आप रिकॉर्डिंग करके मेरा वाला जो पार्ट है एक हेल्थ इंश्योरेंस का कैप्सूल बना के रख दीजिए. सो ये वापस आपका लिए वो स्पेशली है, वो काट के किया है इसे, देखिए. ओके, चलिए बिफोर क्लोजिंग मुझे याद दिलाइएगा ये क्वेश्चन. सर एक मिनट सर, हम दो क्वेश्चन किए, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए और एक मैरिड के लिए. आई एम इन इंश्योरेंस but I married middle of the term. If I enter in my wife. Okay. So let me answer this question again. Short में, very simple. अगर आपका पॉलिसी जनवरी में लिया हुआ है, नेक्स्ट ड्यू 1 जनवरी को आने वाला है, जून में आपने शादी किया है, आप आज फॉर्म भर के कंपनी के पास जाइए. I want to add a member. My wife has got married. फॉर्म भर के दीजिए, KYC दीजिए. They will add that person from today onwards in that policy. और वो जो बैलेंस 6 महीने का है ना, वो प्रीमियम लेके आपको वो करने देंगे. Many companies allow this. I don't know whether all are allowing this, but many companies allow this. आप कर सकते हैं. Yes. Sir, there is another question since you are starting the session now with top up.
So what I want to say that before marriage, I had an individual policy of national of 10 lakhs. Yes. After marriage, I took 4 lakhs FHO, Star Health, and then I increased to 5 lakhs. Okay. So on October 2018, Yeah. I had my wife's both knee replacement. Okay. Okay, at a network hospital, agreed Yes. hospital, sorry. Yes. So Yes. those who are not claiming service tax. Yes. So now, next year, before COVID, I applied for a 25 lakhs super top up. Okay. So they have rejected my, they have returned my claim, saying Okay. that I can take the top up. My wife cannot, because Okay. she had applied, she had taken maximum claim amount. Okay. So let me answer your question slightly differently, but let me first take the topic of top up, and then I think your question will get answered. First, let us understand when you are taking a top up, what are the do's and don'ts. Okay. When top up started in India, it started as a normal plain top up insurance policy. थोड़े टाइम के बाद एक इंश्योरेंस पॉलिसी आया जिसका नाम था सुपर टॉप अप. Why did super top up come and what was the problem with the top up policy? What is the purpose of top up policy? सबसे पहले आपकी जो मेन इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसको बेस इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, जितने की भी है, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, अगर आपका क्लेम उससे ज्यादा आता है तो आपके पास दो चॉइस है. या तो आप अपना इंश्योरेंस बढ़ाइए, विच मींस अगर आप 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 भर रहे हैं, अगर आप 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम हो जाएगा शायद 50% मोर, शायद. प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी देयर, अभी आजकल चेंजेस हो गई है, बट लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक. द लॉजिक वाज बाय ए लार्ज टॉप अप पॉलिसी एट ए वेरी वेरी लो प्रीमियम. तो अभी गौतम दा ने बोला मेरे पास 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी है, 5 लाख बेस पॉलिसी है और 95 लाख सुपर टॉप अप पॉलिसी है. इनका उम्र के हिसाब से 5 लाख की पॉलिसी का ये प्रीमियम भर रहे होंगे 25,000 और टॉप अप का प्रीमियम ये भर रहे होंगे सिर्फ 5,000. आई एम जस्ट गिविंग अ राउंड फिगर एग्जांपल. क्यों? जब भी कोई कंपनी टॉप अप पॉलिसी बेचती है, एक तो आपको बोलती है कि आपके पास या तो एक बेस पॉलिसी होना चाहिए और उस बेस पॉलिसी के हिसाब से आप डिडक्टेबल लेते हैं. Whenever you buy a top up or a super top up policy, you have to define a deductible. If I am buying a 25 lakh super top up policy, I am having a deductible of 5 lakhs. What is the meaning of that deductible? The deductible का मतलब ये है कि ये 25 लाख की पॉलिसी तब काम करेगी जब आप ऑलरेडी 5 लाख रुपया खर्च चुके हैं, either out of your pocket or from any other health insurance policy. ये दो कंडीशन है. बहुत लोगों को ये फर्स्ट कंडीशन पता नहीं है. उनको लगता है कि नहीं आपको पॉलिसी ही होनी चाहिए. नो, you can actually buy a super top up policy with a deductible of 5 lakhs, which means पहला वाला खर्चा 5 लाख मैं अपने पॉकेट से करूंगा और पीछे वाला खर्चा आप अपनी कंपनी से करना. That is also allowed. However, why would I do that? Why would I spend 5 lakh rupees? So chances are when you are having a super top up policy, you have your own policy which is called the base policy. That base policy defines your deductible. Now the mistake most people do is this. If they have a 5 lakh policy, they take a deductible of 5 lakhs. इसमें प्रॉब्लम है. अगर आपकी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, क्लेम अगर आपका 5 लाख रुपए आया है, चांसेस आर कि आपको 5 लाख पूरे नहीं मिलने वाले हैं. किसी ना किसी टर्म्स एंड डिडक्शंस, ये वो ये नहीं देता है, पीपी किट फलाना ढिमका, आपका क्लेम 4 लाख रुपया पास हुआ है. अगर आपका क्लेम 4 लाख रुपया पास हुआ है, आप इसके पास जाइए, सुपर टॉपअप के पास, वो क्या बोलता है 5 लाख रुपया पूरा खर्च करके आओ, तभी मेरा टॉपअप डिडक्ट इन पिक्चर आ जाएगा. देन दे मॉडिफाइड दिस, देन दे अंडरस्टूड नहीं कि अगर आपने 5 लाख रुपया अपने पॉकेट से खर्चा है, माय पॉलिसी किक्स इन, बाय अ टॉपअप पॉलिसी. द डिडक्टेबल, आई ऑलवेज टेल ऑल माय क्लाइंट्स, अगर आपकी 5 लाख रुपए की पॉलिसी बेस पॉलिसी है, टेक अ डिडक्टेबल ऑफ 3 or 4 lakhs. Don't match these 5 lakh rupees because as soon as 3 लाख रुपया खर्चा हो गया ना, ये टॉपअप पॉलिसी इन पिक्चर आ जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, चालू हो जाएगी. Now problem with claims. 1, preferably buy both the policies from the same insurance company. अगर आपकी बेस पॉलिसी नेशनल की है, टॉपअप नेशनल से लीजिए. अगर आपकी बेस पॉलिसी स्टार की है,
टॉप अप स्टार से लीजिए। अगर आपकी बेस पॉलिसी बूपा से है, टॉप अप बूपा से ही लीजिए। अनलेस आपकी कंपनी के पास टॉप अप है ही नहीं, then go and buy a top up from any other company. One. Second, buy the top up policy as close as possible to the renewal date of the base policy. Buy the top up policy as close as possible to the date of the renewal policy. Why? Can anybody answer this question? दोनों का एक्टिवेशन साइमल्टेनियसली हो जाएगा। क्यों क्यों एक इंपॉर्टेंट क्यों है? If someone forget to renew the top up policy. I will give you a better reason. सर वेटिंग पीरियड जो रहता है क्या? नहीं, वेटिंग पीरियड वाली नहीं, वेटिंग पीरियड वाली बात नहीं है। आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड, बट आई वांट आंसर्स फ्रॉम पीपल। अच्छा हुआ आप आंसर कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द आंसर व्हिच आई एम लुकिंग फॉर, एंड आई विल टेल यू व्हाई। एनीबडी एल्स? There won't be any cover for that remaining period in case there is a gap. Which explain that. Suppose the policy is due on say 30th June. And Okay. Super top up policy is starting from 15th of July. From Okay. 1st July to 15th July, you may not have a cover of the super top up. क्यों? अगर मेरी पॉलिसी लास्ट ईयर ली हुई है तो वो लास्ट ईयर वाली तो सुपर टॉप अप चालू ही होगी ना। See, I bought a policy, base policy, which was due in June, and 2 years ago I had a super top up policy which I took in July. तो इस साल में मैं जब आता हूं, इवन बिफोर जून, मेरे सुपर टॉप अप पॉलिसी जो मैंने लास्ट ईयर रिन्यू की थी वो तो अभी तक एक्टिव है कि नहीं? Unless you are buying it for the first time. I take your point, what you are trying to say, but I am taking a little bit extended. Let me come back to my question and I will give you the answer also, and then you will understand. So we had a customer who had a 5 lakh rupee policy with us, and they bought a super top up policy from somebody else. Why? Because at that time our company did not have a super top up policy. So our policy was in Feb and the super top up policy was in October. कैंसर का क्लेम आया, 15 lakh super top up policy with a 5 lakh rupee deductible. And the answer is what SP Shenoy was saying. कैंसर का क्लेम आया, पहला वाला जो क्लेम था वो फरवरी वाली पॉलिसी में से कीमोथेरेपी का एक लेके, बाय द टाइम द सुपर टॉप अप पॉलिसी गॉट रिन्यूड इन अक्टूबर, ये फेब वाला पॉलिसी में से फरवरी से नवंबर तक 50,000, 60,000, 80,000, 80,000 व्हाटएवर लेके 5 लाख रुपया पूरा खर्चा हो गया। लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन। बेस पॉलिसी वाज इन फरवरी, कीमोथेरेपी चालू था, 50,000, 50,000, 60,000, 60,000, 80,000 ले लेके ये अक्टूबर में ये वाली पॉलिसी रिन्यू हुई, ठीक है। इन नवंबर दे कंप्लीटेड द 5 लाख रुपी ऑफ द फरवरी पॉलिसी। 5 लाख के बाद जब खर्चा आया, दे पुट द क्लेम इन दिस अक्टूबर वाला सुपर टॉप अप पॉलिसी। कंपनी रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज द सुपर टॉप अप स्टार्टेड इन अक्टूबर। फ्रॉम दैट डे these people had spent only 2 chemotherapies, खाली 1.5 लाख रुपया खर्चा किया था। फरवरी में 3.5 लाख रुपया खर्चा हो गया था फरवरी से अक्टूबर तक। लेकिन ये पॉलिसी जो 15 लाख की है, इसमें 5 लाख रुपए डिडक्टेबल था। ये 5 लाख रुपए डिडक्टेबल अक्टूबर से चालू होता है। इनने बोला कि 1 अक्टूबर से 5 लाख रुपया पहला खर्चा करके आओ, फिर मैं तुमको 15 लाख रुपया दूंगा। Is there anybody who did not understand what I am saying? I will repeat. सर प्लीज रिपीट। एंड माय अनदर क्वेश्चन, यदि किसी के पास यदि सिर्फ टॉपअप ले आए, सिर्फ टॉपअप ले आए और डिडक्टिबल 5 लाख की, वो जैसे निकाल दोगे, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है विजय, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, लेकिन मेरा आपका क्वेश्चन प्लीज रिपीट सर। I will repeat. This is very important, and this is where I will close. सर मैंने कहा, मैंने बोलो विजय। सर मैं कह रहा हूँ कि यदि हमने बेस पॉलिसी ली नहीं है, बेस पॉलिसी हमारे पास है नहीं, नो प्रॉब्लम, और हमने डिडक्टेबल लिमिट रखी है 5 लाख की, पहले आप 5 और हम 5 लाख अपने जेब से खर्च करेंगे, उसके बाद पहले आप 5 लाख रुपए अपने पॉकेट से खर्चा करिए, बाकी ये सुपर टॉप अप देगा। अच्छा ओके। और फिर जो आपने जो अभी आंसर दिया कि वो जो फरवरी से अक्टूबर तक का, उसमें और बाद में वो काम नहीं गया कि वो
आपका आवाज फिर ब्रेक हो रहा है, पर मैं ये क्वेश्चन वापस शुरू से समझा रहा हूँ. I'll give this example again. This is real life example. This happened with me and my client, and I want all of you to understand this. Do not keep your top up policy very very far away from the base policy. आज मैं कस्टमर के पास गया, चलो यार एक पॉलिसी मेरे से ले लो, कुछ भी नहीं काम देते हो तो चलो एक सुपर टॉप अप भी मेरे से ले लो. नहीं, सुपर टॉप अप पॉलिसी का डेट शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू योर ओरिजिनल पॉलिसी. Sir, your voice is breaking. No, if my voice is lagging, then it is a problem from your side. आपका इंटरनेट कहीं पर वीक है या कुछ है. I will repeat the whole thing again for all those who missed. ठीक है? Customer had 5 lakh rupee base policy and 15 lakh rupee super top up policy with a 5 lakh deductible. यहां तक सबको समझ में आता है? The problem was the base policy was in February and the super top up policy was in October. February में ये लेडी को कैंसर हुआ, ट्रीटमेंट हुई, कीमोथेरेपी हुआ, कभी 50,000 का बिल, कभी 60,000 का बिल, कभी 80,000 का बिल. वो बिल करते 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 अक्टूबर तक उनका 3.5 लाख रुपया खर्चा हो गया. ठीक है, बाकी खर्चा अक्टूबर के बाद 1.5 लाख रुपया हुआ. ऑल दोस 5 लाख रुपीज वाज पेड बाय द फर्स्ट पॉलिसी विच वाज देयर इन फरवरी. क्यों? क्योंकि उसका 5 लाख का पॉलिसी है, उसको 5 लाख वहां से मिला कैंसर का. जैसे ही 5 लाख रुपए के ऊपर खर्चा हुआ, now they went to the super top up policy which is started from October. अक्टूबर से ये पॉलिसी चालू होती है. 15 लाख की पॉलिसी है और 5 लाख का डिडक्टेबल है. ये लोग गए कि हमारा 5 लाख रुपया खर्चा हो गया है, अभी बाकी पैसा हमको तुम्हारे से लेना है. ये बोला हम पैसा तुमको नहीं देगा. क्यों? क्योंकि तुम्हारा पॉलिसी अक्टूबर में चालू हुआ है. अक्टूबर से आज तक तुमने खाली 1.5 लाख रुपया खर्चा किया है. पहले 5 लाख रुपया पूरा खर्चा करके आओ मेरे पॉलिसी के डेट से, फिर मैं तुमको 15 लाख रुपया दूंगा. This happened with us almost 10 years ago. उसके पहले मुझे भी ये पता नहीं था, और उसके पहले ICAA नहीं था जो ऐसा सेशन करता था कि कोई हमको ऐसा समझावे कि ऐसा भी होता है. You learn from your own experience, or you learn from the experience of others who are more experienced than you. If there is the second takeaway from today's session, what was the first takeaway? Go and check how much health insurance cover you have. Is it enough? And does it need to be increased? The second question is, if you are going to be buying a top up, don't buy it today. Buy it close to the renewal date of your main health insurance policy. Because उस दिन से वो खर्चा चालू होने वाला है. 5 लाख रुपए डिडक्टेबल, 3 लाख रुपए डिडक्टेबल, 10 लाख रुपए डिडक्टेबल. वो डिडक्टेबल पहली वाली पॉलिसी में से आएगा, और सुपर टॉपअप तभी तुमको पैसा देगी जब उस डेट के रिन्यूअल के बाद आपने उतना पैसा खर्चा किया है. I can tell you with guarantee that if there are, कितने लोग हैं ये लोग अभी यहाँ पर, there are 21 people. I am sure 18 or 19 people did not know this. If you knew this, congratulations. 100% नहीं जानता है. 100% नहीं. सर नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते. Congratulations to you. दारुण सेशन হচ্ছে মেডিক্লেম হবে. দেখো না. Okay. If anybody has not understood what I have told you just now, I have repeated it twice. I am ready to repeat it 3rd times. If you have not understood it, ask me a relevant question. सर इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि वो लिमिट पूरी होना चाहिए उस पॉलिसी पीरियड में. Yes. जब उसके पहले. Yes. तो कंपनी, यदि सेम कंपनी अपनी पॉलिसी है, तो कंपनी Yes. के हमारे साथ ऐसा चीट कर सकते हैं कि इसको रोक के रखते हैं ताकि नहीं. इसकी लिमिट हो. नहीं, कंपनी कैसे रोकेगी? आपने पॉलिसी जिस दिन पे लॉग इन की है उस दिन पे पॉलिसी इशू डेट मिलेगा. रोक के कैसे रखेगी? अगर मेरी बेस पॉलिसी 1 जनवरी को है और मैं अपनी टॉप अप पॉलिसी 2 जनवरी को जाके कंपनी से लेता हूं, दे कैन नॉट होल्ड द पॉलिसी सेइंग हम तुमको नहीं देने वाला है या डिले करेंगे. डिले करेंगे तो भी कितना, 2, 3, 4, 5 दिन करेंगे ना. कोशिश करके सेम डे के आगे पीछे रखिए. जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी और 1 जनवरी मैच होना चाहिए. यहाँ 1 जनवरी रखिए, यहाँ 10 जनवरी रखिए, नो प्रॉब्लम. आगे पीछे रखिए, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. इन द मंथ ऑफ जनवरी होना चाहिए. एक्चुअली सेम मंथ में होना चाहिए. कोशिश करके सेम मंथ में, एंड प्रेफरेबली क्लोज टू द डेट. प्रेफरेबली क्लोज टू द डेट. Anybody did not understand or wants me to repeat this?
क्लोज सर थैंक यू, पहले जानकारी नहीं थी। समझ में आया सर। मुझे भी जानकारी नहीं थी विजय, ये तो मेरे कस्टमर के साथ जब क्लेम हुआ, जब वो पेपर हाँ। रिजेक्ट होके आए, मैंने उसको बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैसे वो लोग रिजेक्ट करेंगे, इतने साल से मैं इंश्योरेंस कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। जब हमने वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी, वो रिजेक्शन लेटर पढ़ा, तभी अकल आई कि यार अभी तक हमको किसी ने ये समझाया नहीं। क्यों? Because when we took the agency at that time, the concept of top up and super top up wasn't there. It was a new product which was there in the market, and most insurance companies have not trained their advisors on this. In fact, let me tell you, Alzira, just hold on 1 second. I'll give you an opportunity to ask your question. Okay. So I was already empaneled with a private health insurance company over there. I went and gave this example to the trainer who was training us for all this private health insurance company policy terms and condition. I gave him this example. He also told me, नहीं ये claim मिलेगा. Then I explained to the trainer कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये हमारे कस्टमर के साथ हुआ है. Then he said, अरे बाबा आपने हमको समझाया, ये तो हमको भी पता नहीं था. A trainer who was training the advisors of the health insurance company to sell policies, ये policy का ये terms है, condition है, उसको भी ये बात पता नहीं थी। सर अभी भी काफी ट्रेनर्स को ये पता नहीं होगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेनर्स को तो हटाओ, हम लोग 20 जन हैं यहाँ पर, उसमें से 19 लोगों को पता नहीं है। मुझे भी इसीलिए पता है क्योंकि मेरे कस्टमर के साथ हुआ है, मेरे को सिखाया किसी ने नहीं। ट्रेनर्स तो हमारे से सीनियर है ना, जो हमें ट्रेन करते हैं, उनको भी नहीं पता होगा। एग्जैक्टली, उनको पता नहीं होगा बिकॉज वो हमको ज्ञान बांट रहे हैं। वो ज्ञान बांटते हैं, हम उनको सेल करके दें। उनको वो एक्सपीरियंस आता है भाई, ये जाके प्रेजेंट करो और अपने एडवाइजर को बोलो बेचो बिंदास में माल, हम क्लेम देने के लिए बैठे हैं। ऐसा है सर, ये तो एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस से आते हैं सोचिए। ओनली एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली सर। या ये लोग खाली बोलता है बेचो बेचो बेचो। यस, खाली बेचो मत बेचो, लेकिन बेचो ऐसा कि ये क्लाइंट जिंदगी भर तुम्हारा हो जाए। बात कमीशन की हो रही थी गौतम दा, बहुत लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस हम नहीं बेचते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हम नहीं बेचते हैं, हम तो खाली म्यूचुअल फंड बेचते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको जो अच्छा लगता है वो बेचो, लेकिन हमारे जैसे मेजॉरिटी लोग जो सब कुछ बेचते हैं, जिसका घर सब कुछ से चलता है, which means there are times when customer wants to invest in mutual fund, sometimes market is bad, he doesn't want to invest in mutual fund, वो FD के लिए हैप्पी है, लाइफ इंश्योरेंस भी उसको चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी उसको चाहिए। लोग बोलते हैं यार दीपक हम तुम्हारे पास ऑफिस में आते हैं तो कांदा भी हम एक ही भाजी से लेते हैं, बटाटा भी एक ही भाजी वाले से लेते हैं, भाजी भी एक ही भाजी वाले से लेते हैं, हम भाजी बेचने के लिए नहीं बैठा हूं। लेकिन he says I don't want to go to 5 people for 5 different personal finance products, no, I want you to handle my total portfolio। इसीलिए अगर मैं उस स्थिति में हूं जहां पर मैं सब कुछ बेचता हूं, मेरे को सब कुछ का नॉलेज जरूरी है, एंड सही बेचो, तभी वो क्लाइंट आपके लिए हमेशा रहेगा। सेकंड पॉइंट गौतम दा बोल रहे थे, देखा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज आपको 15% रिन्यूअल कमीशन दे रही है। अगर हर साल प्रीमियम बढ़ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आपका कमीशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको इनकम आ रहा है। मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, क्लेम के टाइम कस्टमर को सर्विस तो देनी पड़ेगी, एडवाइस राइट देनी पड़ेगी, काम चलता रहेगा। दादा मॉडर्न ट्रीटमेंट सर 2 क्वेश्चन रहे मेरे, सर 2 क्वेश्चन रहे मेरे। बोलो विजय। सर मॉडर्न ट्रीटमेंट सब लिमिट रखी है काफी प्लान में, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट एक तो ये टेक्निकल हमको पता नहीं है, तो हम कैसे इसको टैकल करें। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि वो जो आजकल 2 साल 3 साल की प्रीमियम है, तो उसका टैक्सेशन कैसे करना है। प्रॉब्लम है, इसका कोई सही आंसर नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट क्लासिफाइड IRD ने तो बोला है आप करिए, वो स्टमक स्टेपलिंग जो है पहले नहीं मिलता था अभी देते हैं, लेजर सर्जरी होता था पहले नहीं मिलता था अभी देते हैं, बोला तो है देते हैं, लेकिन कंपनीज ने ये वाले क्लेम अभी तक पास करने शुरू नहीं किए हैं। वी विल लर्न दिस थ्रू एक्सपीरियंस, थोड़ा टाइम हो जाने दो। आपके पास क्लेम आएगा आप डिस्कस करेंगे, मेरे पास क्लेम आएगा मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे किसी फोरम में शेयरिंग होगा, हम सब सीखेंगे और समझेंगे। सर मेरा और सर टैक्सेशन का क्या प्रॉब्लम है विजय? टैक्सेशन का थोड़ा सा पता करना, जैसे 3 साल का आजकल प्रीमियम भरा जाता है। हाँ, तो उसके रूल क्लियर है, उसका रूल क्लियर है। अगर आप 3 साल का प्रीमियम या 2 साल का प्रीमियम साथ में भर रहे हैं, इक्वली डिवाइड करिए 3 साल में, और आप तीनों साल में उसका इक्वल
अगर आपने 60,000 भरा है, इस साल 20,000, नेक्स्ट ईयर 20,000, नेक्स्ट ईयर 20,000, उसकी क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स की आ गई। तो उसका 80 डे सेक्शन का अलग सर्टिफिकेट मिल जाएगा एवरी ईयर। बात सर्टिफिकेट की नहीं है, आप खाली क्लैरिफिकेशन अपने सीए को बताइए, आपने अगर इस साल 60,000 भरा है, वो इस साल 20,000 क्लेम करेगा, हाँ। नेक्स्ट ईयर 20 क्लेम करेगा और उसके अगले साल 20,000 क्लेम करेगा, ऐसा है। ओके ओके ओके, ठीक, थैंक यू। बोलो तुर्जो। सर अभी मिला सर डिलीवरी, अभी पढ़ूंगा सर। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, अमेज़न से मिला, अभी सुबह में मिले थे। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है पे पर्सनल जो है, मेरा 5 लाख का है, टॉप अप रिजेक्ट कर दिया 25 लाख का। कौन सा कंपनी? स्टार। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि सर 2018 का अक्टूबर में मेरा वाइफ का बोथ नी रिप्लेसमेंट हुआ था। ओके। तो राइट नी उसका कैशलेस नहीं हुआ था, उसका रिइंबर्स हुआ, और लेफ्ट नी कैशलेस हुआ था, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैशलेस और रीइंबर्समेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन थिंग है वो बोल रहा है कि आपका जो लिमिट है वो पूरा खत्म हो गया, आपका 5 लाख का पॉलिसी, इसलिए टॉप अप नहीं होगा। आपका मेन पॉलिसी कौन सा कंपनी का है? मेन पॉलिसी स्टार का ही है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा 5 लाख का। ओके। तो मेरा कोई क्लेम नहीं हुआ टिल डेट, टचवुड। तो वाइफ का अक्टूबर में 2 नी रिप्लेसमेंट हुआ। अभी वो बोल रहा है कि आप खुद के लिए टॉप अप ले सकते हो, मतलब और वाइफ के लिए वी विल नॉट रिन्यू इट बिकॉज़ यू हैव। क्वेश्चन समझ गया, लेट मी आंसर दिस। और एक चीज सर हम बोल रहे हैं, वो जो टॉप अप लिए थे ऑनलाइन में, वो मेरा को जानकारी नहीं था, इसलिए मैं सेम डेट में या सेम मंथ में नहीं लिए थे। वो बोल रहा है कि जब आप टॉप अप लिए थे तब आपका वाइफ का नी रिप्लेसमेंट हुआ था, उसका आप उल्लेख नहीं किया, मतलब सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया, इसलिए बंद कर दीजिए पॉलिसी। जब नेक्स्ट टाइम रिन्यूअल आएगा मत रिन्यू करना ये वाला पॉलिसी। सर अभी 5 लाख में तो होगा नहीं, पर वो जाने दो, वो जाने दो। लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। नो, अभी इसका इलाज ढूंढते हैं, इसका रास्ता निकालते हैं। I have always told everyone, whenever you buy a top-up policy, buy it from the same company you have the base policy, because it is easy to coordinate with the same company when there are claims from 2 different policies. अगर यहाँ कैशलेस मिला है, चांसेस है यहाँ पर भी कैशलेस मिल जाएगा। नहीं मिला तो सेम कंपनी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना इजी है। अगर टॉप अप पॉलिसी अलग कंपनी में है, बेस पॉलिसी अलग कंपनी में है, क्लेम आया है, यहाँ का पेपर वर्क दो, फिर यहाँ से सर्टिफाइड पेपर लेके ये कंपनी को दो, ये नहीं सबमिट किया, ये नहीं बताया, इट इज गोइंग टू बिकम हेल। बहुत डिफिकल्ट है, जाने दो। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है टॉप अप, मेरे को अपने आप को तो कवर करना है, गो टू एनी अदर कंपनी, आस्क फॉर ए सुपर टॉप अप पॉलिसी, वो देता है कि नहीं। अगर देता है ले लो। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? नी ऑपरेशन के लिए परमानेंट एक्सक्लूजन मिलेगा, मतलब वही बोल रहे हैं सर, केयर हेल्थ बोला परमानेंट एक्सक्लूजन। अगर परमानेंट एक्सक्लूजन नी ऑपरेशन का देता है, लेकिन बाकी सब प्रॉब्लम्स कवर करने के लिए तैयार है, ले लीजिए, ठीक है। सेकंड, ये 20 लोगों में स्टार का कंप्लेंट 5 बार आया है, विच मींस कहीं पर कुछ तो भी गड़बड़ है। आपका बेस पॉलिसी पहले पोर्ट करिए दूसरा किसी कंपनी में, और जैसे ही पोर्टिंग हो जाए वहां पर उस कंपनी नवा एक सुपर टॉप अप 2 या 3 दिन के बाद में ले लीजिए। हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओके सर। अगर हम अपने आप के लिए ये सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करेंगे? और सर, अच्छा, और सर वो बात भी है कि अगर मैं स्टार्ट से टॉप अप लूं, बेस लूं और केआर या मैक्स से लूं तो रीइंबर्स मिलेगा, कैशलेस तो नहीं मिलेगा। कैशलेस कभी भी एक हॉस्पिटल 2 अलग अलग पॉलिसी में आपको नहीं देगी। अच्छा, इसलिए मैं मोस्ट इंश्योरेंस कंपनी टॉप अप में, मोस्ट हॉस्पिटल्स टॉप अप में तो कैशलेस देगी नहीं, अनलेस बोथ द पॉलिसीज आर विद द सेम इंश्योरेंस कंपनी। सर पर्सनल क्वेश्चन सर, इज केयर हेल्थ इज गुड फॉर अस? पर्सनल सर, यू मे आंसर, यू मे नॉट, और आई विल टॉक टू यू पर्सनली व्हाट्सएप। नहीं, मेरा आंसर अगर 20 लोगों को हेल्प कर सकता है तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प 20 पीपल रादर देन हेल्पिंग 1 पर्सन। सो क्लियरली नहीं, देखो सुनो, देखो जैसे मैंने बोला ना, अगर मैं आपको बोलूंगा ना ये वाला कंपनी से जाके लियो, मार्केट में 40 लोग खड़े रहेंगे और आपको बोलेंगे नहीं ये तो थकेला कंपनी, इसने हमारा क्लेम रिफ्यूज किया है। लेकिन जितना भी सुनाई दे रहा है ना, most of the complaints are coming from Star,
a lot of complaints from CARE, which was previously Relicare, and हर कंपनी का क्लेम्स है. देखो, मैं आई एम पर्सनली वर्किंग विद मैक्स बूपा एज द प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी along with National Insurance Company as my PSU company. Why? Because 1984 में ऑप्शन तो था ही नहीं. नेशनल इंश्योरेंस से चल रहे हैं, सब क्लाइंट्स नेशनल इंश्योरेंस के पास है, सब रिन्यूअल पॉलिसी वहां पर होता है. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 15-20 साल पहले चालू हुआ. हमने डिसाइड किया कि हम किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करेगा ही नहीं, बिकॉज ये सब चोर लोग हैं, ये लोग क्लेम रिजेक्ट करता है, फलाना ढिमका. हमारे दिमाग में भी वही था. तो बहुत साल तक हमने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लिया ही नहीं. आज से कुछ 10 या 11 साल पहले जब मैक्स बूपा एस्टैब्लिश हुआ था 2011 में, मैक्स बूपा वाला आरएम मेरे पास चक्कर लगा के सर आप ज्वाइन करो, क्यों नहीं आप ज्वाइन करते हैं, हमारे पास ये है वो है, हम आपको ट्रेनिंग देगा, फलाना देगा. फाइनली वो पीछे पढ़ के इतना पीछे पड़ा कि हमको लगा चलो. और उसका ऑफिस हमारे ऑफिस के बाजू में ही था, मतलब यहाँ से वॉक करके उधर चले गए. 2 दिन सुबह से शाम तक फुल ट्रेनिंग लेके आया. प्रोडक्ट क्या है, काम कैसा करता है, कंपनी क्या है. Bupa is the number 2 health insurer in the world. In the world. So when Max Bupa started, their USP was कि हमारे पास Bupa आया है, the second largest health insurer in the world. Any NRI, if you have your client, तो उसको पूछो आपने Bupa का नाम सुना है क्या, बोलेंगे yes, हमारी तो इंश्योरेंस पॉलिसी Bupa के साथ है. So that is the goodwill which came through. Went to their training, understood their product, understood their processes, decided चलो अभी हम इस कंपनी के साथ काम करेंगे. So as of today, I work with Niva Bupa. आज के दिन में इसका नाम है. 80% of my customers, including my own family's policies, are with Niva Bupa. Am I recommending Niva Bupa? No, I'm just telling you the facts. कि मेरा पॉलिसी और मेरे कस्टमर्स का पॉलिसी यहाँ पर है. क्या नीवा बूपा ने क्लेम रिजेक्ट नहीं किया है? किया है. वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लेडी का जिसका 20 साल से हाइपरटेंशन था, नीवा बूपा का ही रिजेक्शन था. लेकिन there are times when my customers get admitted to hospital, कैशलेस उनका क्लेम पास हो जाता है, वो लोग ठीक होके घर पे आ जाते हैं और मेरे को पता नहीं चलता है. तो आई फील दिस इज वन कंपनी जो बोलती है वो करती है. सेकेंडली, एक ये लोग ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है लास्ट 1-1.5 साल पहले. इट इज कॉल्ड रीअश्योर. आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर नीवा बूपा. मेरे को कोई पैसा वो लोग नहीं देते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस. मेरे को इनफैक्ट अगर कहीं से पैसा मिलता रहेगा, आई विल हैप्पीली टेक इट. हैविंग सेड दैट, देयर इज अ पॉलिसी कॉल्ड रीअश्योर. Go and study it. आज के दिन में at the rate which they are giving and the features which that policy has, market में किसी के पास भी नहीं है. Number 1 health insurance policy in the market today, Niva Bupa Reassure. Try, check it out. क्या केयर के साथ काम करना चाहिए, क्या स्टार के साथ काम करना चाहिए, इट इज योर ओन इंडिविजुअल डिसीजन. अगर विजय के पास 40 पॉलिसी है और उसको 8 पॉलिसी में क्लेम रिजेक्शन आ रहा है, if I was Vijay, I would move out of Star and go to any other company. Sir, the reply of the first question I asked, the premium of senior citizen of National has increased. It has increased. And I have ported some to red carpet of Star. Yes. So, and I am facing problem from Star regarding claims. So, what to do to retain the client? You told me about banks. Take them out from Star. Take them out from Star and port them somewhere else if the possibility is there. Sir, otherwise. Sir, Bupa's premium is much high, sir. My client can afford. देखो, वो एक आजकल क्या जमाना है जिसको बोलते हैं ना पे एंड स्माइल. अगर फैसिलिटीज भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, तो पैसा भरना पड़ेगा. I understand that clients cannot pay. I told you, my clients in the last 2 years, I have lost more than 15 clients जिन्होंने अपना नेशनल इंश्योरेंस का पॉलिसी सीनियर सिटीजन भरना बंद इसीलिए कर दिया because they could not afford it. This is the fact of life. We have to live with this. Okay, sir. Thank you. गौतम दा, अभी मेरे को ताकत नहीं है और कुछ बोलने का. खाना खाने का टाइम हो गया है. नहीं, ठीक है. एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बोलिए. तो मेरा एक हम तो स्टार्ट में एजेंसी है. ओके. यूनाइटेड इंडिया में एजेंसी भी है. तो मेरा एक कॉलीग है यूनाइटेड, वो स्टार्ट भी काम करता था. तो वो एक तो बात बताया, तो इंसिडेंट बताया जो उसका, तो उसका क्लाइंट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, शायद कैंसर का पेशेंट. तो वो देखा है, जो हॉस्पिटल में जाने के बाद देखा है कि उसका बगल में एक तो स्टार वाला पेशेंट है और यूनाइटेड इंडिया में पेशेंट है. स्टार वाला जो पेशेंट है वो स्टार कंपनी से डॉक्टर आया था.
डॉक्टर आने के बाद उसको हॉस्पिटल के डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट ऑर्डर करता है ये 40,000 इंजेक्शन मत दो, इसको 10,000 इंजेक्शन दो, स्टार वाला का जो पेशेंट है। तो वो थोड़ा कुछ दिन बाद तो मर गया पेशेंट। तो ऐसा कम करने से तो ये हक है, ये राइट्स है, ये स्टार कंपनी का राइट्स है क्या है? मैं भी इतनी देर से यही बोल रहा हूँ ना। देखो 1.5 घंटे से डिस्कशन हो रहा है, मैक्सिमम कंप्लेंट्स एक ही कंपनी का आ रहा है। ये कंपनी का काम हम लोगों को करना बंद करना चाहिए। अरे इसलिए तो वो स्टार है ना। ठीक ठीक। अरे इसलिए तो उसका पब्लिक इशू फेल हो गया ना। जब ये आया तो पब्लिक इशू फेल हो गया। तुमने सुना है पब्लिक इशू फेल कितना हुआ है लास्ट 5 साल में? एक ही कंपनी स्टार हेल्थ, दे हैड टू विथड्रॉ देयर पब्लिक इशू बिकॉज उनको पैसा नहीं मिला। इट्स गुड डिस्पाइट राकेश झुंझुनवाला बीइंग ऑन द बोर्ड। राकेश झुंझुनवाला है ना, उसके बाद भी उसका पब्लिक इशू नहीं, इसके बाद भी पब्लिक इशू नहीं हुआ ना। सर एक क्वेश्चन है कि विकास। अगर स्टार में किसी सीनियर सिटीजन की पॉलिसी है तो वो प्रीमियम जो है वो 50% डिडक्टेबल पॉलिसी ऐसा है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है कि हम 50% देंगे। जी, नाउ द आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज फैक्ट्स, तो अभी अगर पोर्ट करना हो तो कौन सा, किस कंपनी की पॉलिसी जो है वो ऐसी होगी जो प्रीमियम में भी कंफर्टेबल हो क्लाइंट को एज वेल एज क्लेम भी सुटेबल हो? नहीं होगा। अभी 70-30 हो गया सर, 50% नहीं है सर। नहीं, वो पुराना पॉलिसी जो वो रेड कार्पेट की बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, रेड कार्पेट में 70-30 हो गया सर। पहले था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, नॉन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर प्री एग्जिस्टिंग था तो 50% मिलता था, अभी 70% हो गया सर। 70 किया है तो प्रीमियम भी उतना बढ़ाया होगा ना। तू जो प्रीमियम भी बढ़ाया होगा ना। नहीं, प्रीमियम सेम है सर। प्रीमियम सेम है, ओके ठीक है। चलो ठीक है। देखो अलग अलग कंपनी से काम करने वाले अगर एक ही रूम में होते हैं तो फिर ये फायदा होता है, बिकॉज जो टर्म्स एंड कंडीशन या न्यू चेंजेस है वो सुनने को पता चलता है। ये दीपक ये होता वो था 70-30% बोलने से नहीं होता, वो बेका वो नहीं देता, इधर उधर करके काट देता है वो लोग। नहीं, सीनियर सिटीजन का प्रीमियम सेम है सर, उसको बढ़ाया नहीं। अरे तू जो थोड़ा रोको भाई। ये एक्चुअली ये कंपैरिजन के लिए अगला दिन प्रोग्राम करेंगे। वही चीटर कंपनी। गौतम दा, मैं यही कहने वाला था, अगर ऐसे चलता रहा तो 12 बज जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, अच्छा भी लगता है, जानकारी मिल रहा है। जानकारी थोड़ी है ये, टाइम का वैल्यू समझो ना। हाँ, ये कंपैरिजन दीपक सर ने पहले कह दिया कि मेरे में ज्यादा हिम्मत अब नहीं है। ओके। ये कंपैरिजन के लिए ये ब्रोकिंग हाउस को बुलाना पड़ेगा, जिसके पास पूरा सारी कंपनी है, वो कंपैरिजन दे पाएंगे। तो उसको बुलाएंगे, अगला जब प्रोग्राम करेंगे वो ब्रोकिंग हाउस को बुलाएंगे, ठीक है ना? तो तब आपको पता चलेगा। नहीं वो बात भी सही है, पर गौतम दा आप मार्केट में अगर जाएंगे ना, आपको ऐसे कोई एडवाइजर मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं मैंने स्टार में जितना भी पॉलिसी है मेरे को क्लेम सब मिला है। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो क्लेम नहीं देती है, पर आप ये इतना छोटा सा सैंपल साइज देखिए। अगर 20 लोगों में से 4 लोग कंटिन्यूअसली स्टार का कंप्लेन कर रहे हैं, मींस कुछ तो भी गड़बड़ है कहीं पर, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ऐसा एकदम तो सही है। तो अभी आज का ये कंक्लूड करना है, रात बहुत हो गया, क्योंकि ये इसमें और ये एक्सटेंडेड फीड डिस्कशन करना पड़ेगा। तो सेकंड डे हम लोग इसका करेंगे, कैसे होगा उसके साथ हम आपका साथ वो ब्रोकिंग हाउस का वो बुलाएंगे। तो क्या होगा ना, पूरा कंपैरिजन आ जाएगा, वो पूरा चार्ट दिखा देंगे, क्या है नहीं है, रूल्स रेगुलेशन वो भी दिखा देंगे। तो ये है इसमें। हाँ, दूसरी बात, एक सेकंड गौतम दा, खाली ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैंने शायद कवर नहीं किए होंगे, बिकॉज मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाया था, कोई फ्लो नहीं था। जैसे बोलना चालू किया, किसी ने क्वेश्चन पूछा, हम चलते गए। अगर सुन लीजिए, अगर ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इनके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप एक वो क्वेश्चन या एक सैंपल या नंबर ऑफ क्वेश्चन बना के गौतम दा को भेज दीजिए। एक शीट बनाते हैं, अगली बार जब भी हम मिलेंगे हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद, वी विल, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द टॉपिक। ये टॉपिक के लिए हम लोग पूरा दिन बात कर सकते हैं। देन वी विल टेक ऑन व्हाट वी हैव नॉट डिस्कस्ड। एग्जैक्टली। और इसमें क्या है अपॉर्चुनिटी, हम एक लाइन में बोल देता है। अभी हम लोग सब म्यूचुअल फंड में ऑडिट है, कमीशन हटने जा रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन इसके पैरेलली कोई समझ लीजिए कोई किसी का पास 1 करोड़ की 2 करोड़ जिसका जो कैपेसिटी है ईओम रहेगा, तो 1 करोड़ होने से उसका 20 लाख रुपया साल में कमाई होगा। 1 करोड़ के लिए कितना फैमिली चाहिए? बस आज का दिन में फैमिली फ्लोटर में एवरेज 40-50,000 उसका होता है।
तो मेरा ख्याल से जिसका पास 200 क्लाइंट है उनका 1 करोड़ प्रीमियम ज्यादा कुछ नहीं है। अब 20 लाख लोग उनका तो 15 लाख तो मिलता ही रहेगा और 5 to 10 लाख उसका रिमबर्समेंट में मिलेगा। वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तो हम उनका बोल देंगे कौन सा कंपनी में ये मिल सकता है, कैसे मिलता है। 15% तो सबका वो तो बराबर है, वो कमीशन हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बनाइए। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू कमीशन लाइफ लॉन्ग। आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है ये। हाँ, ये सबके लिए जरूरी है। Yes. सबके लिए, उनके सस्टेनेबिलिटी लिए, हमारा पेटर्निटी के सस्टेनेबिलिटी लिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हेल्थ इंश्योरेंस का रखना चाहिए। उसका 1000 करोड़ म्यूचुअल फंड हो सकता है, लेकिन उसके अच्छा है 1 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस का। ये नंबर 1 है। हाँ, ये एक बात बोल दिया। और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अभी तो दीपक जी बहुत कुछ बोल दिया। 2-3 आपका क्लाइंट जो लोग है जिसका लड़की का शादी होने वाला है, वो गार्जियन को बोलिए जो उनका इंश्योरेंस है कि नहीं है तो शादी के पहले उनका पॉलिसी काट दीजिए, तो उसका मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा। जो नहीं मिलता है उसका दहेज लेके कम से कम मेडिक्लेम दहेज ले लीजिए। शादी की जब बात होने वाला है उस टाइम, तो उसका ये एक सोल्यूशन मिलता है। एक बोल दिया। अच्छा, जितना मेरा बहुत सारा रेलवे का क्लाइंट है, रेलवे तो गवर्नमेंट सर्विस है, उसका मेडिक्लेम मिलता है, लेकिन वो लोग का ESI हॉस्पिटल से मिलता है। वो लोग का मेरा एक लाइव एग्जांपल है। हमारा ये हावड़ा TPC में एक क्लाइंट है जिसका 2 किडनी डैमेज हुआ था। तो उसका क्या हुआ, अपोलो में उसका ट्रांसफर करना पड़ा। तो उसका करीब 16 लाख का जरूरत था, लेकिन वो गवर्नमेंट से नहीं मिला है। वो लोग का उनका जमीन सब कुछ बेच के उसका ट्रीटमेंट करा पड़ा। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका तो गवर्नमेंट उनका पूरा देंगे मेडिक्लेम, ये मत सोचिए। तो जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको मेडिक्लेम पॉलिसी दीजिए, नहीं तो वो जो बेटर ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट में जाएंगे उसका पैसा मिलेगा नहीं। इसके बड़ा बिजनेस का जगह है जहां पे आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। मैंने बोला था गौतम दा, मेरा आर्टिकल आने वाला है इसी टॉपिक के ऊपर, एम्प्लॉय मेडिक्लेम, व्हाई यू नीड टू हैव ए सेपरेट मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर योरसेल्फ पर्सनल। कल या परसों 2 या 3 दिन में ये आने वाला है। आई विल सेंड द लिंक टू यू, आप आइका में डाल दीजिएगा, सबके काम में आ जाएगा। तो ये जो बताया आपका सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल सही है। देखिए कितना बड़ा मार्केट ओपन कर दिया ना सबको, ये बिजनेस के लिए। यही टॉपिक 3 साल पहले मैं अपना वो YouTube चैनल पर वीडियो बना के बहुत टाइम पहले छोड़ दिया है। कोई लोग देखते हैं, कोई लोग नहीं देखते हैं। आप विश्वास करिए, वो YouTube चैनल के ऊपर वो जो टॉपिक्स है उस पर मेरे को कमेंट पता नहीं कहाँ से अक्रॉस इंडिया कोई लोगों के आते हैं कि मेरा ये क्लेम रिजेक्ट हुआ है, ये कंपनी ये नहीं दे रही है। कोशिश करके आई ट्राई एंड हेल्प देम आउट, बट वो रह रहा है कोई गाँव में, मैं रहा हूँ, या आई कैन नॉट फॉलो अप विद हिम, बट एटलीस्ट द नॉलेज इज हेल्पिंग। यस। तो दिस इज द मेरा बोलने का मतलब ये बहुत बड़ा मार्केट है। अगला 10 साल ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए छोटा जितना डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग के लिए साल में लाखों रुपया कमाई करना बड़ा बात नहीं है। ओनली हेल्थ इंश्योरेंस में यही मेरा जो कंक्लूजन यही है। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करना है। सनोज जी, आप थोड़ा सा गौतम दा एक छोटा क्वेश्चन करबो सर के? छोटा बोलो तुर्जो, जल्दी करो फटाफट। सर, हम लोग तो एडवाइजर है, तो वुड यू सजेस्ट अस टू पॉलिसी हेल्थ एंड लाइफ का जो टर्म इंश्योरेंस है और हेल्थ का जो पॉलिसी है वो ऑनलाइन में खरीदूं, पॉलिसी बाजार या दूसरे से? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग खुद के एडवाइजर के लिए बोल रहे हैं। माय आंसर टू यू इज दिस, कितना बचाएगा तुम? 4-5 हजार या 6 हजार। अच्छा, अभी भगवान ना करे तुम्हारा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, क्या तुम्हारा वाइफ फॉलो अप कर सकेगा क्या कंपनी के साथ? नहीं। तो आप जिस शहर में रहते हैं, आपके सर्किल में जो नियरेस्ट आपका फ्रेंड है, जो एजेंट है, पॉलिसी उससे लीजिए। भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, ही विल बी एबल टू सर्विस यू बेटर। प्लस आपने जो उसको बिजनेस दिया है उसमें से जितना भी 1000, 2000, 5000, 10,000 कमाएगा, दोस्त ने कमाया तो अच्छा है ना। So you are talking about term plan also? कोई भी पॉलिसी, टर्म होए, एंडोमेंट होए, हेल्थ इंश्योरेंस होए, टॉप अप होए, कोई भी होए, बाय इट फ्रॉम योर फ्रेंड, बाय इट फ्रॉम योर फ्रेंड। ओके सर, तुर्जो, ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम भी पूछा था 15 दिन पहले। हाँ, यस, बाय इट फ्रॉम योर फ्रेंड। यस। तो आज यहीं पे खत्म करना चाहिए।
तो ये कंक्लूजन आज सनोज जी देंगे, क्योंकि सनोज जी इतना रात तक नहीं रहता है। ये आपके लिए दीपक जी, आपके लिए सनोज जी इतना तक जगा हुआ है। सनोज जी आपका ये चाहिए आज का ये रिमार्क्स थे, और खासकर मेरे लिए जिसको कि इंश्योरेंस काफी कुछ समझ में नहीं आती है, तो आज काफी कुछ मैंने नोट किया। अगले प्रोग्राम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे करने के लिए, उस दिन कुछ सवाल हमारे भी रहेंगे, तो थोड़ा समझ करके काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स आए हैं इसके बारे में। हाँ, बहुत कुछ आज तो थोड़ा हुआ है, ये इतना डेप्थ है ना सनोज जी। तो मेरा भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम किया है। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कोई बुक में लिखा नहीं है। हम 2 टिप्स दे दिया ना, जो शादी वाला लड़की के उसका इंश्योरेंस करा दीजिए, तो उनका खर्चा कम से कम आज का दिन में मैटरनिटी कम से कम 3 to 5 लाख लगता है, बच जाएगा। तो ये एडवाइस कोई एडवाइजर हमारा देंगे ना, वो इन्वेस्टर को वो फिदा रहेंगे उनके पास। गौतम दा, मैटरनिटी कवर सारे इंश्योरेंस में मिलता है या इज देयर एनी एक्सक्लूजन? No. Every policy has got a specific condition about maternity. कोई फिक्स बेनिफिट देते हैं, कोई अनलिमिटेड देते हैं, किसी का टर्म्स एंड कंडीशन जब तक हस्बैंड नहीं होएगा पॉलिसी में नहीं देते हैं, किसी कंपनी में फादर और डॉटर रहेगा तो भी मिलता है। सो ये ब्रॉड क्वेश्चन है, आप उतना तो कम से कम रिसर्च करिए अपनी तरफ से कि कौन सी वाली पॉलिसी जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं या आपके नियरेस्ट सर्कल में अगर और कोई कंपनी में काम कर रहा है उसको वाला वो बिजनेस दीजिए। अगर आपकी मैटरनिटी कवर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कवर है सर। यस केयर में अगर आप 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम देते हैं तो पहले दिन से कवर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सिंगल ईयर का प्रीमियम देते हैं तो इसमें 3 साल का वेटिंग है। देखिए हर पॉलिसी में अपने अपने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, और वो उस आदमी से ही पता चलेंगे जो उस पॉलिसी उस कंपनी के लिए काम कर रहा है। एक आदमी के लिए सब कुछ पता होना इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच आज के लिए। कभी ये आज जो हुआ ये रिकॉर्ड हो गया, ये जो सेशन हुआ ये माइंड ब्लोइंग सेशन। गौतम दा, एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। सेशन की जो ड्यूरेशन है ना 2 घंटे या मैक्सिमम 2.5 घंटे रखिए। यस अरे इतना टाइम थोड़ी, हम लोग का टाइम तो 9 बजे तक खत्म करने का था, अभी 10 बज गया, 1 घंटा एक्सटेंडेड, ये एक्सक्लूसिव। आप फ्यूचर में ये ध्यान करिएगा। नहीं वो तो हमारे लिए बोनस है, 1 घंटा हमारे लिए बोनस है, बोनस मिल गया। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी कब बिना बोनस देगा हम नहीं पता है, लेकिन आज जो बोनस मिल गया वो फ्यूचर में काम आएगा 100%। बस वही चाहते हैं कि आज मेरे पास नॉलेज है, अगर मेरे दिमाग में है और किसी के काम में नहीं आता तो फिर वो नॉलेज का फायदा क्या। मैं 100, 200, 300 क्लाइंट को सर्विस करता हूँ, अगर सबके पास नॉलेज आएगा तो बहुत फायदा होगा सबका। इसलिए दीपक जी बिल्कुल सही बात है। दीपक जी, इसलिए हम लोग देखिए एकेडमी अलग से बनाया नॉलेज शेयरिंग के लिए, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग सब नहीं लेता है। देखिए इसमें बहुत सारा को हम तो ग्रुप में डाला है, लेकिन आया 20, 22, 23 लोग आया है, तो नॉलेज सबके लिए जरूरी नहीं है। वो लोग माल बेचने के लिए आया है, तो जो नॉलेज लेता है, इसलिए हम लोग SDGA का मेंबरशिप अलग कर रहा है। वो लोग को ही हम लोग ज्ञान देंगे जो लोग वो सुनना चाहता है, ठीक है ना। अगला दिन वही चलेगा, हम लोग को हमारा वही क्लोज ग्रुप में ही करेंगे। सब फैमिली मेंबर हमारा इंतजार कर रहे होंगे डिनर टेबल पर। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट दीपक सर, गुड नाइट। गुड नाइट।